Okay. Now about your weightage of the chapter. So in your paper, if you remember in the first lecture we discussed uh, final accounts, partnership final accounts will have a weightage of 12 marks. Okay. Earlier it was 15 marks 2 years ago. With the changed pattern, now it is 12 marks. And 12 marks ka compulsory question you have. 12 marks ka compulsory question you have. Question number 7. Last question of your paper will be a final account question. Okay. MPO also. NPO is also compulsory. That is the sixth question, second last one. NPO is also a final account only. NPO is also a final account. So, all in all, you have two chapters entirely of final accounts. NPO मतलब non-profit concerns का final account. And ये जो आप पढ़ रहे हो ये profit making business का final accounts है. Okay, trading business का final accounts. वो charity business, non-profit, non-trading का final accounts है NPO. That is also of 12 marks. That is also compulsory. Sixth question. Seventh question is final account, partnership final account, the chapter which we are going to learn now. The compulsory question है. उससे पहले understand a few things about partnership. Let's understand a few things about partnership. What is a partnership business and how it is different from a sole proprietorship? Any idea? Sole proprietorship is maintained and owned by only one person. Like Hmm, उसका जो ownership होता है वो एक जन का होता है. A partnership में 2-3 people come together, put their capital, and then start a business or a firm. correct. So what is the basic difference? आपने पूरा 11th standard में जो accounts learn किया है that is entirely of a sole proprietor. Entire 11th standard the accounts which you have learned is of a sole proprietary business. मतलब single person was owning and managing the business. Okay. Whereas in 12th standard now we are learning something that is called as partnership business. Something that is called as partnership business. So now why this change from sole to partnership? Why will a person go from sole proprietorship to partnership? यहाँ पे एक जन के जगह बहुत सारे जन आ गए मैनेज करने के लिए, ओन करने के लिए. Capital बढ़ जाता है. कैपिटल बढ़ जाता है. ओके. होल एंड सोल रीजन टू इंक्रीज द साइज ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज द कैपिटल. जितना बड़ा बिजनेस उतना ही आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, कैपिटल ज्यादा आएगा बिजनेस में, उतना ही इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल विल बी एबल टू अचीव. ज्यादा बड़े लेवल पे बिजनेस करोगे तो डिस्काउंट्स भी मिलेंगे आपको गुड्स में. कंपटीशन यू कैन रिड्यूस फ्रॉम द मार्केट. जितना बड़ा आपका साइज ऑफ द बिजनेस होगा उतना यू विल बी एबल टू बीट द कंपटीशन इन द मार्केट. Excess skills, just a second. Just a minute. Huh?
Sorry. So why this transition from sole proprietor to partnership? When a single person was managing and owning the business, uske jagah why did we go to partnership? Because when the size of the business increases, you get additional capital, additional skills, additional minds working, efficiency बढ़ जाती है, बराबर है? Competition you can reduce, economies of scale, बड़े level पे business कर सकते हो. So all these are advantages of a partnership. And यही reason होता है जिसके लिए size of the business हम बढ़ाते हैं. Sole proprietor से partnership, partnership से private limited company, and from partnership अपना private limited से public limited company. Sorry, present day largest form of organization in the present day world existing is a public limited company. Okay, joint stock company जिसको कहा जाता है, जो आपको जिसके shares list होके trade होते हैं stock market पे. Okay, that's a public limited company. Now, ये तो हुआ पार्टनरशिप. अभी पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म कैसे होता है? सपोज मेरे को, निशी को, प्रियांश को, स्मिथ को, हम 4 पार्टनर्स हैं, हमें बिजनेस फॉर्म करना है, पार्टनरशिप बिजनेस. हाउ विल वी फॉर्म इट? सो पार्टनरशिप बिजनेस प्रैक्टिकली आपको अगर फॉर्म करना है तो इसके लिए कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है जितना कंपनीज में होता है. इसमें क्या होता है, 3-4 लोग जिनको पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है, बिजनेस करना है, उनको एक अग्रीमेंट तैयार करना पड़ता है. दैट अग्रीमेंट कैन बी रिटन और अ वर्बल अग्रीमेंट. वर्बल अग्रीमेंट भी चलता है. इन इंडिया द रिटन एग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी. ओके, रिटन एग्रीमेंट बनाना कंपल्सरी नहीं है, वर्बल एग्रीमेंट भी चलता है. बट इन महाराष्ट्र सिंस 1984 दिस हैज बीन मेड कंपल्सरी. तो पार्टनरशिप अगर आपको महाराष्ट्र में बनानी है और उसको बिजनेस का स्टेटस देना है तो रिटन एग्रीमेंट आपका कंपलसरी है. ओके, रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है, कंपलसरी है. बाकी पैन इंडिया इट इज नॉट कंपलसरी. बाकी स्टेट्स में आप वर्बल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप बिजनेस बना सकते हो. व्हाट इज एन अग्रीमेंट? अग्रीमेंट कुछ और नहीं होता है, आपके इंटरनल बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि भैया हम 4 पार्टनर हैं, हम 4 ही अभी फिलहाल काम करने वाले हैं बिजनेस में, चारों का नाम, चारों का एड्रेस, बिजनेस का नेचर, क्या बिजनेस करेंगे हम लोग, हमारी ऑफिसेस कहाँ कहाँ होंगी, इंटरनल रूल्स होंगे कि भैया कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है तो उसको सैलरी देनी चाहिए तो कितनी देनी चाहिए, प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट लॉस जो भी है कौन से रेशियो में हम लोग शेयर करेंगे. फिर एक नई चीज होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, ये आप लर्न करोगे अभी डिटेल में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल डाला है, किसी ने कम डाला है, तो उस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. तो अगर मिलना चाहिए तो कौन से रेट से मिलना चाहिए. फिर अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसको कौन से रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए. पार्टनर ने कुछ ड्रॉइंग्स किया है तो अगर उस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो कौन से रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्रॉइंग्स पे. फिर अगर डिस्प्यूट्स हो गए, कोर्ट में सेटल करना पड़ेगा तो हु विल रिप्रेजेंट, कौन से डिस्प्यूट्स कंसिडर होंगे हमारे पार्टनरशिप में, वगैरह वगैरह. जो भी आपको कवर करना है कि कौन सा पार्टनर बिजनेस को करेगा, कौन एक्टिव होगा, कौन स्लीपिंग होगा. तो बोलने का मतलब आपकी मर्जी, ऐसा कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, कहीं लॉ में कुछ नहीं दिया हुआ है. आपकी मर्जी, आपको जैसे अपने बिजनेस को चलाना है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखनी है वो उस एग्रीमेंट में फिलअप कर दो. ओके, तो अग्रीमेंट क्या है? आपका इंटरनल जो भी आपका डिस्कशन हुआ है, पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे चलाना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तो आपके इंटरनल रूल्स, आपकी ईजनेस के हिसाब से, आपकी सहूलियत के हिसाब से, वॉट एवर रूल्स यू फ्रेम फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस, दैट इज नथिंग बट अग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप. इज दिस क्लियर? तो अपने अपने हिसाब से अपना अपना बिजनेस, अपने अपने पार्टनर्स अपना हिसाब से अग्रीमेंट बना सकते हैं. उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन डालना है खुद के बिजनेस के हिसाब से डाल सकते हैं. एंड फिर आपको क्या करना होता है, वो जो रिटर्न अग्रीमेंट होता है उसको लेके जाना होता है. एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है, एक ऑफिस होती है गवर्नमेंट की, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बोलते हैं उसको. हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रजिस्ट्रार होता है, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ रजिस्ट्रार. उसके पास जाना है, 2-2.5 हजार रुपया, 3 हजार रुपया अभी कुछ फीस है वो पे करनी है.
और ये रजिस्टर करवा देना है, थप्पा लगवा देना है गवर्नमेंट का, ये पब्लिक हो गया। मतलब अभी कुछ अगर केस प्रॉब्लम्स डिस्प्यूट्स हो गई तो हमारे पास वैलिड प्रूफ है कि भैया ये एक लीगल पार्टनरशिप है, ये एक एक्चुअल पार्टनरशिप है, जो बिजनेस चल रहा है कोई आलतू फालतू नहीं है, टाइम पास नहीं है, ये एक्चुअल बिजनेस है। तो आप अपने अग्रीमेंट को रजिस्टर करवा देते हो विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ओके, एक बार उसको रजिस्टर करवा दिया, then that agreement is called as a partnership deed. Then that agreement is called as a partnership deed. deed का मतलब होता है registered agreement. deed का मतलब होता है registered agreement. Is the screen visible, right? Screen is visible ना? आपको मैं बताता हूँ ये deed कैसी दिखती है। ये deed कुछ ऐसी दिखती है। ये देखो, कैन यू सी दिस? This is a registered partnership deed. Okay, contents of a partnership deed. मैंने आपको बोला क्या क्या होता है डीड में, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना डाला, रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर, राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वगैरह। ये सब पूरे चैप्टर्स में हम लोग आगे डिटेल में लर्न करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल लोन ड्रॉइंग्स एंड ऑल। सो डिस्प्यूट्स हुआ तो क्या करेंगे, सैलरी कमीशन कितना देना है। ओके, सो जो आपको इंक्लूड करना है आपकी मर्जी, आप इस डीड में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा लॉ है, पार्टनरशिप के लिए कौन सा लॉ पार्टनरशिप को गवर्न करता है। तो हमने देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन सा लॉ गवर्न करता है, कि अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो गए तो हमें कौन से लॉ को फॉलो करना है इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881। तो अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स डिस्प्यूट्स हो गए और हमें पता नहीं चल रहा है, अग्रीमेंट में भी कुछ नहीं है, तो भैया रास्ता क्या, तो हमें लॉ रेफर करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो कौन सा लॉ हम फॉलो करेंगे फॉर पार्टनरशिप, तो वो होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इज दिस क्लियर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये लॉ हम फॉलो करेंगे। अगर कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो गई और हमारे पास अग्रीमेंट में कुछ है नहीं, डीड में कुछ है नहीं, प्रॉब्लम्स हो गई सामने वाले पार्टी के साथ और कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वी फॉलो द लॉ, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। गॉट इट? सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सब इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें दो चीजों का ख्याल रखना है, टू थिंग्स। ये ऑब्जेक्टिव्स में घड़ी घड़ी पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि इफ योर अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब आपने पार्टनरशिप डीड बना दिया, अग्रीमेंट बना दिया, रजिस्टर भी करवा दिया, लेकिन आपने उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डाला ही नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डाला ही नहीं है कि क्या रेशियो में आप प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करोगे पार्टनरशिप के, ये कुछ डाला ही नहीं है। तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, माइंड यू, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से शेयर करो। 3 पार्टनर है, 3:2:1 में कर सकते हैं, 1:1:1 इक्वली कर सकते हैं, 5:3 कर सकते हैं, जो रेशियो में करना है आपकी मर्जी, आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आपने डाला नहीं है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वल होना चाहिए। तो अगर बाय चांस मैंने, निशी ने और प्रियांश ने, हमने पार्टनरशिप बनाई, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डाला ही नहीं, कल उठ के निशी बोल रही है कि मेरा कैपिटल ज्यादा है, मुझे 50% प्रॉफिट चाहिए, बाकी 50% आप दो लो, तो हम तो कोर्ट केस कर देंगे। और कोर्ट क्या बोलेगा कि लॉ फॉलो करो। लॉ क्या बोल रहा है कि नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो निशी का क्लेम वैलिड नहीं गिना जाएगा। दैट इज द मीनिंग। तो अगर आपको सेफ रहना है पहले से, तो पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डाल के रखो इन द अग्रीमेंट। ठीक है, तो आगे जाके कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। दूसरी चीज एक्ट में क्या दी गई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या दी गई है कि भैया अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मैं, निशी और प्रियांश, वी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। ओके, मोबाइल फोन्स का बिजनेस है, बाइंग सेलिंग ऑफ मोबाइल फोन्स।
और हमने तीनों ने मिलके कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। मैंने 1 लाख डाला है, निशी ने 1 लाख डाला है, प्रियांश ने 1 लाख डाला है, तीनों ने 1-1 लाख रुपया कैपिटल डाल दिया। अब बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने बोला मेरे पास और ज्यादा पैसा है, पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको कैपिटल के फॉर्म में नहीं ला रहा हूं, मैं बिजनेस को लोन दूंगा। तो पार्टनर भी बिजनेस को लोन दे सकता है। ओके, पार्टनर भी बिजनेस को लोन दे सकता है, उसको बोलते हैं पार्टनर्स लोन। जैसे आप बैंक से लोन ले सकते हो, फ्रेंड से लोन ले सकते हो, थर्ड पार्टी से लोन ले सकते हो, वैसे पार्टनर भी बिजनेस को लोन दे सकता है। तो अभी मैं 50,000 रुपया और लोन भी दिया है बिजनेस को, तो मेरा टोटल 1,50,000 पड़ा है। 1 लाख कैपिटल पड़ा हुआ है, 50,000 लोन पड़ा हुआ है। अब लोन दिया ना, तो लोन के लिए मैं थर्ड पार्टी हूं, लोन के लिए आई एम नॉट लाइक अ पार्टनर। मतलब वो कैपिटल अलग है मेरा 1 लाख रुपया और लोन अलग है मेरा 50,000 रुपए। तो लोन पे बिजनेस क्या देना चाहिए? अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपको क्या देना पड़ेगा? उसको Interest. इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उस पार्टनर को भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ओके, कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए आप अग्रीमेंट में डिसाइड कर सकते हो, 8%, 9%, 10%, 6%, 7%, जितना करना है। अगर अग्रीमेंट नहीं है, वापस, अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, अगर आपका अग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न डीड नहीं है, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? क्या पार्टनर्स लोन को 6% से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये जरूर मिलना चाहिए। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट किया है 7% का तो 7% मिलेगा, 8% का अग्रीमेंट है तो 8% मिलेगा, 9% का है तो 9%, 5% का है तो 5%। लेकिन अगर अग्रीमेंट नहीं है तो लॉ बोलता है, कल उठ के मैं चढ़ गया बिजनेस पे, मैंने बोला नहीं मेरे को तो ब्याज चाहिए, अग्रीमेंट नहीं है, तो क्या हुआ? तो सबने केस फाइल किया, कोर्ट में गए, जज ने क्या बोला? लॉ फॉलो करो। लॉ क्या बोल रहा है कि भैया 6%, पार्टनर्स लोन पे 6% इंटरेस्ट अगर अग्रीमेंट नहीं बना है तो देना ही पड़ेगा आपको। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या बोल रहा था लॉ, कि अगर आपका कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो फिर यू विल हैव टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, वैसे ही यहाँ पे बोलता है कि 6% से, 6% से आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना पड़ेगा। गॉट दिस? So ये means दो the company will pay the person who has given the कंपनी loan. नहीं, वी आर फर्म, पार्टनरशिप फर्म। Yeah, so the partnership firm will pay to the person who's given the loan. Absolutely. Okay. Partnership firm, the business. We are always doing recording entries in the books of business, accounts of business. The business ने loan लिया है, business will pay interest to that partner. Business का expense. Got it? जैसे लोन बैंक को देते हो ना, बैंक को इंटरेस्ट देते हो, लोन लिया तो वैसे पार्टनर को देना पड़ेगा। सो इन द लॉ, इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये दो ही चीजें दी गई है मेंशन करके। ये दो ही चीजें देने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आइटम है, सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर, डीड में दिया हुआ है। अभी समझो मैंने, निशी ने और प्रियांश ने पार्टनरशिप डीड बनाया, अग्रीमेंट बनाया, और हमने डिसाइड किया कि भाई मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं बिजनेस में, करने वाला हूं इन फ्यूचर, तो मुझे प्रॉफिट वगैरह तो मिलना चाहिए, प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, और प्लस इसके अलावा 5,000 रुपए पर मंथ की सैलरी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं एम्प्लॉय का काम कर रहा हूँ, ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और दोनों पार्टनर्स अग्रीड है, तो हम लोग डीड में डाल देंगे कि 5,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मुझे अलग से मिलनी चाहिए। तो ये डीड में है, तो हम लोग दे रहे हैं, मेरे को मिल रही है सैलरी बिजनेस में से, बिजनेस का एक्सपेंस, और बिजनेस जैसे एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, मेरे को भी सैलरी दे रहा है। बट अगर हमने अग्रीमेंट में ये डालना भूल गए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, हमने डाला ही नहीं है कुछ अग्रीमेंट में सैलरी के बारे में, और मैं गधे के जैसे काम करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, और फिर 1-2 साल के बाद मैंने बोला नहीं मेरे को सैलरी मिलना चाहिए। अग्रीमेंट नहीं है तो क्या हुआ? मैंने इतना मजूरी किया है, मेरे को सैलरी मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, ओवर एंड अबव प्रॉफिट। कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला लॉ फॉलो करो। लॉ क्या बोलेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट सैलरी टू पार्टनर, वो कुछ बोला ही नहीं। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, अगर आपका अग्रीमेंट नहीं है तो सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं मिलनी चाहिए, जीरो सैलरी। अग्रीमेंट है तो ही सैलरी मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलने वाला, इतना भी हाथ पैर मार लो। इज दिस क्लियर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बोला था, हाँ इक्वल होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में बोला था, हाँ 6% होना चाहिए।
सैलरी टू पार्टनर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, कुछ मेंशन ही नहीं किया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। तो अगर आपका अग्रीमेंट है तो मिलेगी सैलरी, ज्यादा मेहनत करोगे पैसे मिलेंगे, अग्रीमेंट में लिखवा दो पहले से, नहीं है तो फिर जीरो, शून्य। वैसे ही कमीशन टू पार्टनर दिख रहा है, कोई पार्टनर सेल्स में बहुत अच्छा है, मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, बहुत गुड्स बेचने में हेल्प कर रहा है, तो वो बोलेगा कि मेरे को एक्स्ट्रा कमीशन भी दो, अग्रीमेंट में लिखवा दो। अग्रीमेंट में होगा तो 5%, 6%, 2% आपको सेल्स का कमीशन मिल जाएगा, बिजनेस आपको दे देगा, बिजनेस पार्टनर को उतना कमीशन दे देगा। बट अगर अग्रीमेंट इज साइलेंट देन व्हाट, तो लॉ वापस साइलेंट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कुछ नहीं, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो कुछ कमीशन वमीशन सैलरी वैलरी कुछ देने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? तो इन सब चीजों से अपने को पता चलता है कि अगर अपने को पार्टनरशिप बिजनेस स्मूथली कंडक्ट करना है विदाउट एनी डिस्प्यूट्स, क्वेरीज, देन व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग टू डू? Make a Make a proper, foolproof, perfect agreement. Specify everything in the agreement. Everything. Clear it out in the agreement. That is the ultimate thing about partnership. Is this clear? आपस में जो आप बिजनेस कर रहे हो लिखित करो, written agreement. Get it registered with the registrar of firms. Once you get it registered, that agreement will become a partnership deed. Partnership deed is also called as articles of partnership. आर्टिकल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे अपने लॉ में होता है ना आर्टिकल 364, आर्टिकल 365, 166, तो इट इज कॉल्ड एज द आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का आर्टिकल भी कहा जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन सब आपके बिजनेस में लिखवा दो, रजिस्टर करवा दो, फिर आप सेफ हो। फिर कुछ भी प्रॉब्लम आया है ना, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर, देन नो पार्टनर कैन गो अगेंस्ट द अग्रीमेंट, नॉट पॉसिबल once they have signed it. Is this clear? Now there are certain features, provisions of Indian Partnership Act, मैंने आपको अभी अभी बताया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में, इट इज इक्वल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ मेंशन नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%, अभी अभी हमने देखा कुछ नहीं दिया। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में कुछ नहीं, सैलरी के बारे में कुछ नहीं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में क्या है, एक चीज खाली दी गई है कि समझो मैं, निशी और प्रियांश, हम लोग तीनों पार्टनरशिप में हैं और हमें किसी चौथे पार्टनर को एडमिट करना है इन द बिजनेस, तो सबका कंसेंट होना जरूरी है। एवरी पार्टनर शुड गिव हिज कंसेंट, सबका कंसेंट होना जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर ने ना बोल दिया तो द न्यू पार्टनर कैन नॉट गेट एडमिटेड इन द फर्म। खाली सबका कंसेंट रिक्वायरमेंट है। और कितने पार्टनर जमा कर सकते हो, डू यू नो द लिमिट? हाउ मेनी partner? 2 to 49. Minimum 2 and maximum 49. There are two acts now about this. Okay, there was a older act, Indian Partnership Act, and there is a recent new change made in the Companies Act 2013 and LLP Act 2009. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो पुराना वाला था 1932 वाला, अभी भी चल रहा है 1932 वाला, उसमें 1932 वाले में ऐसा दिया था कि मिनिमम इज 2, 2 जन तो चाहिए क्योंकि एक हुआ तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 फॉर अ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 फॉर अ नॉन बैंकिंग बिजनेस। ये पुरानी लिमिट थी। फिर 2013 में कंपनीज एक्ट ने जब फॉर्म हुआ तभी पार्टनरशिप एक्ट में भी ये चेंज डाल दिया कंपनीज ने। क्या डाला कि भैया कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में या कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस में 100 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते, 100 से ज्यादा नहीं कर सकते। रीजनेबल लिमिट इज 50, रीजनेबल लिमिट इज 50। तो तब से मतलब आपके सिलेबस में आपको याद रखना है लिमिट क्या है, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 लोग पार्टनरशिप में आ सकते हैं, बैंकिंग नॉन बैंकिंग सब कुछ। ठीक है, तो मिनिमम 2 जन एंड मैक्सिमम लिमिट क्या याद रखनी है आपको, 50। इज दिस क्लियर इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप? यस राहुल, व्हाट डाउट यू हैव? सर शेयर्स में थोड़ी ना ऐसा होता है, शेयर्स में तो कितने सारे होल्डर्स रहते हैं। तो वो शेयर्स किस में होता है? कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज नॉट अ कंपनी। पार्टनरशिप मतलब छोटा लेवल है, कंपनी से छोटा साइज का बिजनेस है। जैसे सीए फर्म्स होते हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे, ये सब पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं।
लीगल फर्म्स होते हैं, लॉयर के फर्म्स होते हैं, ओके, बाटली वाला एंड कंपनी, जलियान वाला एंड कंपनी, पीठा वाला एंड कंपनी, नाम सुना होगा आपने, ओके। ये होता है ENY होता है, डेलॉइट होता है, PwC, ऑल दीज आर फर्म्स, okay, these are not companies, all these are firms, partnership firms. So firm is a bit smaller level than the company in case of turnover, in case of capital requirements. कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, उसको आपको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ओके। कंपनी का मिनिमम नंबर, जो पब्लिक लिमिटेड तुम बोल रहे हो ना, शेयर के शेयर्स डील होते हैं, उसका मिनिमम नंबर 7 होता है, 7, एंड मैक्सिमम इज इन्फिनिटी, अनलिमिटेड। और जो प्राइवेट लिमिटेड होता है उसका मिनिमम होता है 2 एंड मैक्सिमम होता है 200। अर्लियर इट वाज 50, नाउ इट इज 200। तो प्राइवेट लिमिटेड का 2 और 200 होता है, पब्लिक लिमिटेड का मिनिमम 7 और अनलिमिटेड होता है। वी आर डूइंग पार्टनरशिप बिजनेस, उसका होता है अभी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 एज पर द न्यू एक्ट। इज दिस क्लियर? फिर आता है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। ये मैं आपको प्रॉब्लम के साथ बता दूंगा, फिक्स्ड और फ्लक्चुएशन में क्या फर्क होता है। इसके बाद ये रहा फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। ये हमने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लिया है, वापस गो थ्रू कर लेते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म कैसे होता है? तो ड्यू टू एन अग्रीमेंट, रिटर्न अग्रीमेंट के बाद ही होता है, और कुछ इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती। अग्रीमेंट बनाओ, बिजनेस चालू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। नंबर ऑफ पार्टनर्स हमने डिसाइड किया हुआ है, ये रहा, दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैंने अभी अभी बताया, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। कैन यू सी दैट? ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है 2 एंड 50 एज पर द अमेंडेड एक्ट 2013, ओके। शेयरिंग, लॉफुल बिजनेस, पार्टनरशिप शुड बी फॉर अ लॉफुल। पार्टनरशिप का डेफिनेशन ही है कि 2 or more people coming together to carry on a lawful business, to share profits and losses, okay, carried on by all or one of them acting for all। तो लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है। लॉफुल बिजनेस मतलब लीगल। मरीजुआना का, वीड का बिजनेस आप नहीं कर सकते पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप बोल के कुछ भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट आके बंद कर देगा। शेयरिंग ऑफ सर वो प्रॉफिट्स, इधर इलीगल है ना, एस्कोबार इंडिया की में, तरह। इंडिया में इलीगल है ना ऊपर। हाँ तो मैं बोला ना, नहीं कर सकते आप, इंडिया में लाइक इलीगल। एस्कोबार डीलिंग कोकेन। हाँ, एस्कोबार डीलिंग कोकेन। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वी डिस्कस दैट। आपके अग्रीमेंट में वो रखो, जो रेशियो करना है रखो, नहीं है तो फिर क्या एक्ट क्या बोलता है? इक्वल। इक्वल। डिस्प्यूट हो गए, कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक्ट बोलेगा इक्वल। अनलिमिटेड लायबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ पार्टनरशिप। ये सोल प्रोप्राइटर में भी था आपको लास्ट ईयर। जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वेदर इन सोल प्रोप्राइटरशिप और इन अ पार्टनरशिप, governed under Indian Partnership Act 1932. Why am I saying governed under Indian Partnership Act 1932? Because there is one more partnership which is called as LLP, Limited Liability Partnership, जिसका एक्ट बना था 2009 में। दोनों अलग अलग है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में वो अनलिमिटेड पार्टनरशिप है, गवर्नड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब अगर आप ये वाली पार्टनरशिप फॉर्म करते हो, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर हुई है आपकी डीड, अनलिमिटेड पार्टनरशिप, तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब बड़ा ही सिंपल है। आप बिजनेस कर रहे हो, मोबाइल फोन्स का बिजनेस कर रहे हो, आप तीनों ने, हम तीनों ने 1-1 लाख रुपया डाला है, मैंने, निशी ने और प्रियांश ने 1-1 लाख रुपया डाला है। हमने बिजनेस किया, बड़ा लॉस हो गया, लॉस हो गया, आपको मैंने बताया था उस दिन, याद है? इंसॉल्वेंट हो जाता है बिजनेस, तो आप क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पाते, तो आपका बिजनेस में पैसा खत्म हो गया, आप क्रेडिटर्स को नहीं चुका पा रहे हो, इतने लॉस हो गए, पैसा खत्म हो गया बिजनेस में, 3 लाख रुपए समाप्त हो चुके हैं, फिर भी आपको क्रेडिटर या बैंक लोन को चुकाना बाकी है पैसा, तो आपकी घर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के आपको बिजनेस का लोन चुकाना पड़ेगा। आपका घर का प्राइवेट प्रॉपर्टी, गांव का प्रॉपर्टी सब बेच बाच के आपको बिजनेस का लोन चुकाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू सोल प्रोप्राइटर आल्सो। सिंगल ओनर बिजनेस कर रहे हो या पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो आपको लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के बिजनेस के ड्यूज पे ऑफ करने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरे 3 लाख डाले थे बिजनेस में, खत्म हो गए, अब मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं, सब कुछ बेच के वो भी खत्म हो गया, फिर आप इंसॉल्वेंट हो,
फिर आप बैंकरप्ट, फिर जो नहीं पे कर पाए वो डेफिशिएंसी। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो देखा वो सब कुछ, खाली लंगोटी बची, सब कुछ दे दिया, घर बार सब चुका दिया, और उसके बाद भी कुछ नहीं बचा तो डेफिशिएंसी। दिस इज व्हाट यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसीलिए काफी लोग डरते थे, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करने से डरते थे, पार्टनरशिप बिजनेस करने से डरते थे, साला लॉस हो गया तो घर भी बेचना पड़ेगा। इसलिए अपना गवर्नमेंट केम विद अ न्यू कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। न्यू कंसेप्ट तो नहीं है, 100 साल पुराना कंसेप्ट है, फॉरेन कंट्रीज में चल रहा था, इंडिया में अभी आया, 2008-9 में आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ गया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। तो अभी अगर हम तीनों ने लाख रुपया बिजनेस में डाला है तो हमारी लायबिलिटी 1 लाख ही है, वो 1 लाख डूब गए तो हमें पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया है, यस एक्चुअली बढ़िया है। इसलिए प्रेजेंट डे काफी सारे बिजनेस आर गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नॉट अनलिमिटेड। 32 के अंदर नहीं, 2008 में फॉर्म हुआ था, 9 में लॉन्च हुआ था, 2009 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाता है। तो क्या है, आपको बिजनेस सेफ हो जाता है ना। अभी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो आप थोड़े रिस्क ले सकते हो, ग्रो कर सकते हो बिजनेस में, ओके। और नए लोग आ सकते हैं खुद का बिजनेस करने के लिए, नौकरी अभी कम करेंगे, एंटरप्रेन्योर ज्यादा बनेंगे। एंटरप्रेन्योर ज्यादा बनेंगे तो कंट्री के लिए अच्छा है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, ज्यादा ग्रोथ होगी, बराबर है। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब जितना पैसा आपने बिजनेस में डाला हुआ है उतना ही आपकी लायबिलिटी है, घर बार बेचने की जरूरत नहीं है आपको। सर वैसे ही इन 2013 सोल प्रोप्राइटरशिप को एनकरेज करने के लिए कंपनीज एक्ट में एक और नई कंपनी लॉन्च की गई, सिंगल पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। मतलब मैं सिंगल पर्सन हूं, मैं अपने बिजनेस को एज अ सोल प्रोप्राइटर करना चाहिए तो सोल प्रोप्राइटर कर सकता हूं, या फिर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ रजिस्टर करवा के सिंगल पर्सन कंपनी, 100% शेयर्स मेरे पास है, सिंगल पर्सन कंपनी के फॉर्म में कर सकता हूं। एडवांटेज क्या है, सेम, लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने बिजनेस में 1 करोड़ रुपया डाला है, 1 करोड़ रुपया डूब गया, ठीक है चलेगा, उससे ज्यादा नहीं डूबेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगा। 1 पर्सन कंपनी के अंदर आप रजिस्टर करवा सकते, ओके। यस गर्गी। yes, sir. I wanted to ask that if the agreement is made and then after that they want to add some terms and Yes, conditions, it so it's possible. should be agreeable to all. Then they can make the changes or they can redraft the agreement. They can cancel the original one. If there are many changes, then they can redraft. There are few changes, they can incorporate the changes, get it updated again, registered again with the registrar. Okay. Yes, Thank they you, can. sir. It should be agreeable to all the partners. Okay. So what if they want to register under the new act now? मतलब 1932 से अभी 2030 कैंसल पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में ऐसा होना चाहिए कि कैंसल कैसे करनी है, मैं उस पर भी आता हूं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जो बंद कैसे करनी है उसका भी प्रोविजन होता है डीड में। आई विल कम टू दैट, लेट मी फिनिश दिस पॉइंट्स। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट समझा आपको? अनलिमिटेड मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी विल बी अटैच्ड टू। हम लोग कौन सा कर रहे हैं पार्टनरशिप, 1932 वाला कर रहे हैं, हमारा लायबिलिटी अनलिमिटेड है। वो खाली आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपको बताया, एलएलपी एंड 1 पर्सन कंपनी। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये तो जाता ही है पार्टनरशिप के साथ। एवरी पार्टनर इज द ओनर ऑफ बिजनेस एसेट्स, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, हैज अ राइट टू टेक पार्ट, ड्यूटी नहीं है, राइट है। कोई ऐसे पार्टनर होते हो जो बोलेगा मैं ज्यादा कैपिटल देता हूं, मैं मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लूंगा, चलेगा। वी कॉल देम स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। वो पैसा देके बढ़ जाएगा, उसको दूसरा काम है, सैलरी है, किधर कंपनी में काम करता है, पैसा देके मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्लीपिंग पार्टनर। जो मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव पार्टनर। ओके, तो आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन एक्ट बोलता है आपके पास राइट है, मैनेज करना आप कर सकते हो, और ओनरशिप आप इक्वल, सब एसेट्स की ओनरशिप, ऑल द पार्टनर जॉइंटली ओन ऑल द एसेट। ऐसा नहीं है कि एक दो, सबको वन फॉर ऑल फॉर वन। एक बार फॉर्म में आ गए तो सब पार्टनर ओनर है, सब पार्टनर मैनेजर है। प्रिंसिपल एंड एजेंट, एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट। एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल म्हणजे ही इज द ओनर, एंड एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑल्सो, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव। मतलब एक पार्टनर ने जाके कुछ कॉन्ट्रैक्ट डील कर ली तो सबको बाइंडिंग है, वो एजेंट के फॉर्म में सबको बाइंड कर लेगा।
और प्रिंसिपल भी आप ही हो, मतलब ओनर भी आप ही हो, एम्प्लॉय भी आप ही हो, और एम्प्लॉयज रख सकते हो, बट वाइल शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वन फॉर ऑल फॉर वन बोलने का मतलब एक ने डिसाइड किया तो सबको बाइंड होगा, सबने डिसाइड किया तो सबको बाइंड होगा, दैट इज द मीनिंग। गॉट इट? देन देयर इज डिसोल्यूशन। अभी बंद कैसे करना है पार्टनरशिप? बंद करना इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, विदुषी। सो पार्टनरशिप के टाइप्स होते हैं, पार्टनरशिप एट विल होता है, पार्टनरशिप फॉर अ वेंचर होता है, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। आपके अग्रीमेंट में आप डाल सकते हो कि भैया 2 साल की पार्टनरशिप है, 2 साल खत्म हो जाएंगे, पार्टनरशिप डिसॉल्व ऑटोमेटिकली। पार्टनरशिप एट विल होती है। विल का मतलब आपने अग्रीमेंट बना लिया, जब कोई भी पार्टनर बोलेगा बंद करना है बिजनेस, कर दो, करना पड़ेगा जक मार के, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल है। फिर पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर होती है। अभी कोरोना चल रहा है, मैंने, निशिन और प्रियांश ने पार्टनरशिप बना ली पीपीई किट्स खरीद के बेचने की। जब तक कोरोना चलेगा पीपीई किट्स हम लोग खरीद के बेचेंगे। तो हमने पार्टनरशिप बनाई है 5 लाख पीपीई किट्स खरीद के बेचने की। 5 लाख हो गए, वेंचर हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप अग्रीमेंट में डाल सकते हो बिजनेस को बंद कैसे करना है। अगर आपने कुछ डाला ही नहीं है तो बिजनेस चल रहा है, फिर बंद कैसे करना है, या जैसे विदुषी बोल रही थी 1932 से 2009 में कैसे आना है, सभी पार्टनर्स रेडी होने चाहिए। All the partners are agreeing, then they can close the business, they can cancel the old agreement, move to the 2009 Act. नया बिजनेस करना है तो नया, या वही बिजनेस को 2009 एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दो। और सर अगर इसमें किसी को अगर छोड़ना और किसी को कंटिन्यू करना है तो उसका भी प्रोविजन डीड में होना चाहिए। उसका पूरा पूरा चैप्टर हम लोग लर्न करेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसके भी प्रोविजन होते हैं। एडमिट करना है, सबका कंसेंट तो होना चाहिए, बट करना है कि नहीं करना है, तो कौन सी उम्र का करना है, क्या क्वालिफिकेशन का करना है, वो आप स्पेसिफिकली डाल सकते हो। रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो उसको क्या क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितना पैसा, कितना प्रॉफिट, कितना कैपिटल, गुडविल कितनी देनी चाहिए, गुडविल का वैल्यूएशन आएगा आपको, ये हम लोग लर्न करेंगे रिटायरमेंट में। ओके, सब प्रोविजन। डेथ हो गई किसी पार्टनर की तो कैसे देना है पैसा, कितना पैसा देना है, कितने टाइम तक का देना है, साल के बीच में मर गया तो क्या, कितने महीनों का देना है, ये सब आपको डीड में मेंशन करना पड़ेगा। नहीं मेंशन किया तो डरने वाली बात नहीं है, सभी पार्टनर रेडी होने चाहिए एट द टाइम ऑफ डेथ, रिटायरमेंट के क्या करना है। ऑल पार्टनर अग्री तो फिर आप रिटायरमेंट डेथ के वक्त वो सब चीजें कर सकते हो विदाउट एनी डिस्प्यूट। लेकिन फॉर डिस्प्यूट आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप लटक जाओगे। अगर अग्रीमेंट में नहीं है तो फिर मारा मारी, जीबा जोड़ी चालू रहेगी कोर्ट में, जब तक कोई डिसीजन नहीं आता तब तक। तो अग्रीमेंट में सब मेंशन कर दो। इधर दिया है आपको, देखो अग्रीमेंट में कंटेंट में दिया हुआ है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का भी प्रोविजन होता है। कैन यू सी दिस? ये रहा पॉइंट नंबर 6। तो सभी चीजें डिटेल में देके रख दो तो बेटर है, बाद में सर पटकने की जरूरत नहीं है। फिर कैपिटल करंट का पार्ट आई एक्सप्लेन विद द सम्स। देन लेट्स मूव टू द प्रिपरेशन अकाउंट्स नाउ। ओके, एक्चुअल फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हमने लास्ट ईयर लर्न किए थे, किसके लर्न किए थे फाइनल अकाउंट्स? Sole proprietor. Sole proprietor के, single person was owning and managing the business, right? This year we are doing partnership final accounts. कुछ खास वेरिएशन नहीं है, सोल प्रोप्राइटर के बेसिस पर ही पार्टनरशिप, बेसिक ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज सेम। जो सोल प्रोप्राइटर में लर्न किया है वही पार्टनरशिप में लर्न करना है, वही कंपनीज में लर्न करना है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आर सेम, खाली धीरे धीरे साइज बढ़ती जा रही है बिजनेस। ओके, तो सोल प्रोप्राइटर में जैसे फाइनल अकाउंट बनता था वैसे ही बनाना है, थोड़े 19-20 एडिशनल चेंजेस है, क्या है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। पहले तो मुझे बताओ अपना बेसिक बुक कीपिंग का प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट? जर्नल बोलो या फिर सब्सिडियरी बुक्स बोलो। रिमेंबर सब्सिडियरी बुक्स वी डिड परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न्स बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, जर्नल प्रॉपर। आप जर्नल बोलो या फिर सब्सिडियरी बुक्स बोलो, बोथ आर वन एंड द सेम, बोथ आर जर्नल ओनली, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, फर्स्ट रिकॉर्ड यू पुट इट अंडर व्हाट? जर्नल। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से आप जर्नल में डाल देते हो। वहां से सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है? लेजर।
तो second step in the bookkeeping process is making a ledger. Why do we make ledger? जर्नल अपने को इंडिविजुअल अकाउंट में क्या हो रहा है ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है. जर्नल अपने को डेट वाइज इंफॉर्मेशन देता है, एक एक दिन पे क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ वो देता है. लेकिन आपको ये पता करना है कि भैया कैश अकाउंट में क्या चल रहा है, बैंक अकाउंट में क्या पोजीशन है, फर्नीचर कितना है मेरे पास, ओनर का कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है बिजनेस में, लोन कितना लिया हुआ है मैंने, सैलरी का एक्सपेंस कितना हुआ है, रेंट का एक्सपेंस कितना हुआ है, परचेज कितना हुआ है, सेल्स कितना हुआ है. इंडिविजुअली अगर आपको जानकारी चाहिए सो वो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? लेजर से. तो एवरी ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल यू पोस्ट देम इन द लेजर. जितने अकाउंट है सबके लेजर अकाउंट डिटेल में बनते हैं, सबको एनालाइज करने के लिए और जितने अकाउंट है बिजनेस में सब लेजर में अलग से इंडिविजुअली डिटेल में बनते हैं फॉर एनालिसिस पर्पस. देन लेजर के बाद एक और टॉपिक हमने सीखा था लास्ट ईयर, दैट वाज ट्रायल बैलेंस. वेरी गुड. व्हाट वाज अ ट्रायल बैलेंस, यू रिमेंबर? List of all ledger accounts. List of all ledger accounts. List of all ledger accounts. कब बनाते थे ये लिस्ट? Before posting At the it end to the of final the year. account. When? At the Before making end the of the final year. account. तो पूरे साल 12 महीने तक we used to do journal, 12 महीने तक we used to make ledger account, balance, और 12वें महीने के एंड में we used to make this list. That list was called as trial balance. इसमें हम लोग क्या करते थे, जितने लेजर अकाउंट है इनके क्लोजिंग बैलेंस मतलब एंड ऑफ द ईयर के बैलेंस, एंड ऑफ द ईयर के बैलेंस की लिस्ट बना के हम लोग डेबिट अलग और क्रेडिट अलग, जैसे कैपिटल अकाउंट हुआ, ड्रॉइंग्स अकाउंट हुआ, परचेज अकाउंट हुआ 40,000, सेल्स अकाउंट हुआ 60,000, सैलरी अकाउंट हुआ 20,000, ऐसे इंडिविजुअली लिस्ट बना देते थे हम लोग. दैट लिस्ट वाज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस. अब ये लिस्ट में हम लोग सबके सब अकाउंट्स बता के एक साथ दिखा देते थे. इनके दो यूज थे ट्रायल बैलेंस के. व्हाट वर द टू यूजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस? Mathematical accuracy. Mathematical accuracy. What do you mean by mathematical accuracy? See, because we are following double entry system, every debit has a corresponding Credit. So ultimately, always your debits will be equal to your credits. सब अकाउंट का मिला के all debits will be equal to all credits. Always होने ही वाला है क्योंकि debits are equal to credit. डबल एंट्री फॉलो कर रहे हो आप. तो ये अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए. याद है? तो टैली हुआ मतलब आपने अरिथमेटिकल एक्यूरेसी परफेक्ट की है, रिकॉर्ड बराबर किया है, सब कुछ सब ट्रांजैक्शन परफेक्टली डबल एंट्री के हिसाब से किए हैं, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो गई. सेकंड यूज क्या था ट्रायल बैलेंस का? सेकंड यूज क्या था? इट हेल्प प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. इट हेल्प्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. सो बेसिकली ट्रायल बैलेंस है क्या? इट इज अ लिंक बिटवीन लेजर एंड फाइनल अकाउंट. लेजर और फाइनल अकाउंट की लिंक है. अब समझो इसको, मैंने ट्रायल बैलेंस बना दिया ईयर एंड पे, इधर मैंने सब अकाउंट की लिस्ट दे दी. इसका मतलब क्या हुआ? इस साल ओनर का कैपिटल कितना है बिजनेस में? 50,000 है. इस साल ओनर ने कितना विड्रॉ किया बिजनेस में से? 10,000. इस साल मैंने गुड्स खरीदे, परचेज हुए 40,000. पूरे साल के परचेज है वो. कैसे साल के परचेज है? लेजर में बैलेंस 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 किया 12 महीने तक. 12वें महीने के एंड का अमाउंट है 40,000 रुपीज. इस साल सेल्स का टोटल है 60,000. मैंने कमाया है 60,000 सेल्स करके. इस साल की सैलरी है 20,000. दिस ईयर की सैलरी है 20,000. मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी है 20,000. ये सभी चीजें कहां से छापी है मैंने? लेजर से ट्रायल बैलेंस में लिखा है ना. ट्रायल बैलेंस कहां से बनाया आपने? लेजर के मदद से. तो लेजर में भी ये सब आइटम्स होती है. ठीक है, तो देखा जाए तो आपको वैसे ट्रायल बैलेंस की कोई खास जरूरत नहीं है.
आप डायरेक्टली लेजर के बेसिस पे भी फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो। डायरेक्टली लेजर के बेसिस पे यू कैन मेक फाइनल अकाउंट्स। आर यू लिसनिंग? बट still we make this trial balance. Why? Because we have all the accounts now at one single place. ये प्रॉब्लम मैनुअल अकाउंट्स में होता है। टैली पे जब आप करोगे ना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो बहुत इजी है। आपको खाली एक जर्नल एंट्री मारनी है, लेजर अपने आप बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाएगा, फाइनल अकाउंट भी अपने आप बन जाएगा, सारे रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाएंगे। एक जर्नल एंट्री आनी चाहिए, जर्नल एंट्री डाल दी, खत्म। आगे का 90% काम कंप्यूटर कर लेगा। मैनुअल अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको पहले जर्नल बनाना है, फिर लेजर में भी आपको पोस्ट करना है। लेजर बहुत वास्ट बड़ा सा बुक होता है, बाउंड बुक होता है एकदम। तो उसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए सब अकाउंट की लिस्ट एक दी तो बेटर होता है। तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स कन्वीनियंट। एक जगह सब अकाउंट्स की लिस्ट रेडी है और इस लिस्ट से यू कैन डायरेक्टली मेक फाइनल अकाउंट्स। इज दिस क्लियर? अब फाइनल अकाउंट्स टॉपिक पे आते हैं। फाइनल अकाउंट्स होता क्या है और बनता क्यों है? व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? और बनाना जरूरी है, नहीं बनाया तो नहीं चलेगा। It helps us understand the financial position of a business. These are At the the end accounts of the financial year. prepared at the end of the financial year. ये तो मालूम है, फाइनल अकाउंट्स है तो साल के एंड में बनते हैं। क्यों बनते हैं? दो रीजन से बनते हैं, आपको बताया था। व्हाट आर द टू रीजंस? Calculate the profit and loss of the business. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एक साल आपने पूरा मेहनत किया, मजूरी किया, इनकम किया, एक्सपेंस किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या किया? प्रॉफिट किया कि लॉस किया? तो कहां से पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस? विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स। गॉट इट? तो वन रीजन ऑफ मेकिंग फाइनल अकाउंट इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। व्हाट इज द सेकंड रीजन? इनकम टैक्स रिटर्न्स। इनकम टैक्स रिटर्न्स तो प्रॉफिट एंड लॉस से पता चल जाएंगे, इतना प्रॉफिट हुआ उतना टैक्स भरना है। Second, Find the assets and liabilities of assets the and business. liability, that is your financial position. Financial position, वो जो तुम बोल रहे हो ना, वो और भी यूजेस है, सबको काम आता है। जैसे टैक्स लाइबिलिटी पता चल जाती है, डेटर को पता चलता है कितना पैसा उसको देना है, अपने को लेना है, क्रेडिटर का पता चल जाता है अपने को कितना देना है, वो सब यूजेस है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट, टू इंपॉर्टेंट रीजन क्यों बनाया जाता है आपका फाइनल अकाउंट, इन अ जस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रीजन, मेजर इंपॉर्टेंट रीजन। नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। पूरा साल जो मेहनत किया उसका रिजल्ट, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। एंड एक साल बाद मेहनत करके कहां पहुंचे, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? वैल्यू ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब अगर बिजनेस बंद हो गया तो कितना से बेच के पैसा आएगा और लायबिलिटी को कितना चुकाना बाकी है। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस पता चलती है। दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदने जाता है ना, तो वो उसकी बैलेंस शीट देखता है, बैलेंस शीट में कितने एसेट हैं। मेरे को अचीजा को खरीदने का है, मैं अचीजा की बैलेंस शीट देखूंगा। अचीजा के बैलेंस शीट पे 10 करोड़ के एसेट है, उसमें प्रॉपर्टी आ गई, फर्नीचर आ गया, एयर कंडीशन आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, झूमर उमर, लाइटिंग, शैंडिलियर, सब कुछ आ गया, सब 10 करोड़ के एसेट है। और लायबिलिटी, अचीजा ने लोन लिया हुआ है बैंक से 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ का लोन लायबिलिटी है, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो 10 करोड़ माइनस 2 करोड़, अचीजा का कैपिटल कितना हुआ? 8 करोड़। You know this, right? Capital plus liability is equal to asset. Capital plus liability is equal to asset. तो अचीजा का एसेट है 10 करोड़, माइनस लायबिलिटी है बैंक लोन 2 करोड़, काट लूंगा। अचीजा के ओनर को कितना दूंगा मैं? 8 करोड़ रुपया लोन, फिर मैं चुका लूंगा। उसका बैंक लोन मेरा, उसके एसेट्स मेरे। अचीजा के ओनर को 8 करोड़ दूंगा, फ्री कर दूंगा। दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये वैल्यू ऑफ बिजनेस जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। इज दिस क्लियर? सिंपल सा एग्जांपल है, आप थर्ड स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड में गए, तो थर्ड से फोर्थ का रिजल्ट एक साल में कितना परसेंटेज मार्क्स आया, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। और थर्ड में आपकी नॉलेज की पोजीशन क्या थी और फोर्थ स्टैंडर्ड में आपकी नॉलेज की पोजीशन क्या हुई, कहां से कहां गए, आपकी नॉलेज बढ़ी, राइट? वैसे बिजनेस की वैल्यू भी बढ़ती है साल दर साल, ऑब्वियसली अगर वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। तो जितना प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है उतनी उसकी वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ती जाएगी ईयर ऑन ईयर।
बढ़ती जाएगी ईयर ऑन ईयर। इज दिस क्लियर? कैसे बढ़ेगी आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये देखो, ये बैलेंस शीट है, ये खाली पड़ी है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। ओनर ने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए से, व्हाट एंट्री विल ही पास? कैपिटल 1 लाख, लायबिलिटी कैपिटल आएगा 1 लाख और एसेट में कैश आएगा 1 लाख, बराबर है। अब इस पैसे से बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस की वैल्यू कैसे बढ़ेगी ये देखने के लिए। इस पैसे से मैंने 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे, 20 रुपीज के गुड्स खरीदे, तो क्या होगा? कैश कम हो जाएगा 20,000 से 20,000 का स्टॉक आएगा। और 20,000 का स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे, बराबर है। ये 20,000 का गुड्स मैंने 30,000 में बेच दिया। अब क्या होगा? ये स्टॉक गया 20,000, कैश कितना मिला? 30,000, तो कैश हो जाएगा मेरा 1,10,000। 10,000 प्रॉफिट, 10,000 प्रॉफिट किस में ऐड होगा? कैपिटल। 10,000। ऐसे आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ गई। आपकी शुरुआत की वैल्यू थी 1 लाख 1 साल पहले, 1 साल में आपने गुड्स खरीदा बेचा, अब आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस हो गई 1,10,000। समझ में आ रहा है? ऐसे धीरे धीरे आपकी साइज ऑफ द बिजनेस, वैल्यू ऑफ द बिजनेस बढ़ती है, जो कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट से पता चलती है। तो ये बैलेंस शीट कहां बनती है? फाइनल अकाउंट्स में बनती है। समझ में आई बात? दूसरी चीज क्या ढूंढना था हमें? प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली कर लिया प्रॉफिट लॉस, 20 का खरीदा 30 में बेचा, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। यही 20 और 30 हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे? टू परचेज, कितना खरीदा था? 20, बाय सेल्स, कितने में बेचा? 30, और ये हो गया प्रॉफिट। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में बताता हूँ, इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी बताया था, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लेस इंपॉर्टेंट प्रॉफिट। याद है आपको? विच व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब फाइनल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ऑल इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट आइटम्स को मिला के। तो ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ना, आपकी मेन एक्टिविटी परचेज और सेल है, तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी का प्रॉफिट हो गया 10,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम इधर, यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, तो यही नेट प्रॉफिट है, यही हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते हैं 10,000। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस डायरेक्टली अंडर बैलेंस शीट, वी शो देम अंडर डिटेल। ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में डिटेल में दिखाते हैं, साल में कितना इनकम हुआ, साल में कितना एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो प्रॉफिट विल बी एडेड टू कैपिटल या वो लॉस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ये है आपका फाइनल अकाउंट, और कुछ नहीं है। फाइनल अकाउंट्स इसी को बोला जाता है। फाइनल अकाउंट्स दो रीजन से बनता है। व्हाट आर द टू रीजंस? नंबर 1, व्हाट इज नंबर 1? Calculating the loss of the profits business. and losses. How do you calculate a profit of or loss for any business? How do you calculate profit or loss of any business? By taking into account all income, all the incomes and subtracting all the expenses. What do you mean by incomes? Now all of you have understood. What do you mean by incomes? The things which you earn every year. The things which you earn every year. हर साल जो कमाते हो। In a trading business जो गुड्स बेच के कमा रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, ये सब आपकी इनकम है। व्हाट आर एक्सपेंसेस? हर साल जो आप स्पेंड कर रहे हो, एवरी ईयर जो आप स्पेंड कर रहे हो, जिसकी लाइफ 1 ईयर है, 1 ईयर या 1 ईयर से लेस है, जैसे कि परचेज हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, हर साल का खर्चा और हर साल की इनकम, एक साल का खर्चा, एक साल की इनकम, उसका डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट और लॉस। गॉट इट? एंड दैट प्रॉफिट और लॉस बिलोंग्स टू कैपिटल, ओनर को बिलोंग करता है, आप ऐड कर देते हो, ऐसे आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ते जाती है साल दर साल। एवरी ईयर योर वैल्यू ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस, दैट इज व्हाट इज शोन अंडर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शोज व्हाट? Does balance sheet show 1 year का result? Yes, only 1 year. Balance sheet Throughout the year का growth. एक साल के एंड में आपकी पोजीशन, एक साल के एंड में आपकी, एक साल का रिजल्ट नहीं, एक साल का रिजल्ट क्या दिखाता है? 1 ईयर का रिजल्ट इज गिवन बाय
P&L. PNL PNL and trading. एक साल, हाँ PNL एंड ट्रेडिंग, एक साल के एंड में हम लोग कहाँ पे पहुंचे वो कहाँ से पता चलता है? Balance बैलेंस sheet. शीट, वैल्यू ऑफ बिजनेस. ओके, तो बैलेंस शीट इज अ लॉन्ग रन कंसेप्ट. बैलेंस शीट देखोगे तो आपको फ्यूचर दिखाई देता है कि ये बिजनेस का कितना वैल्यू आना बाकी है, एसेट मतलब कितना पैसा आना बाकी है, लायबिलिटी मतलब कितना पैसा देना बाकी, फ्यूचर. ऑलराइट, so this is in a gist your final account. Now in detail we'll learn about these accounts and everything. So I want you all to take the first page theory part. If you have any doubt till this point you can ask. Sir, Yeah. sir, if we find the present valuation of businesses like this, then why it is such an expensive and a long process when we go to see companies? Expensive and long process of making the accounts. No valuation, finding the valuation. Finding the valuation, finding the value, this is simply the book value. What I have shown you is the book value. Okay, but in case of companies, we calculate something that is called as an intrinsic value. Intrinsic value और book value में फर्क होता है. Book value मतलब ये asset minus liability at present value जो आपको दिख रहा है. Intrinsic value का मतलब होता है आप estimate करते हो in future ये कंपनी कितना अर्न करेगी. से फॉर एग्जांपल अचीजा होटल, अचीजा होटल का एट प्रेजेंट बुक में एसेट दिख रहा है 10 करोड़, लोन दिख रहा है 2 करोड़, वैल्यू दिख रही है कैपिटल की 8 करोड़ नेटवर्थ. बट जब मैं अचीजा को खरीदने जाऊंगा ना, वो मेरे को 10 करोड़ में एसेट की वैल्यू नहीं देगा. वो क्या बोलेगा, फ्यूचर में 4-5 साल तक तुम मेरे नाम पे बिजनेस करोगे तो तुमको बैठे बैठे प्रॉफिट्स होने वाले हैं, उसका भी पैसा थोड़ा तो मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मेरे नाम पे कर रहे हो बिजनेस. उसको बोलते हैं गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. तो नाम का पैसा, गुडविल इज नथिंग बट नाम का पैसा, बट कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स. तो हम लोग अचीजा के प्रॉफिट्स ढूंढेंगे और हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि हम उसके नाम के वजह से कितने प्रॉफिट कमाए. तो ये एस्टिमेशन में सबका दिमाग खोड़ी लग जाता है. कोई बोलेगा नहीं हम लोग नेक्स्ट 4 साल में 40 लाख एक्स्ट्रा कमाएंगे, कोई बोलेगा नहीं हम लोग 20 लाख कमाएंगे, कोई बोलेगा नहीं हम लोग 30 लाख कमाएंगे. ऐसे वेरियस मेथड्स होते हैं, हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, फिर एक फिगर पे आते हैं कि भैया हाँ नेक्स्ट 4 इयर्स में लेट अस अज्यूम कि हम लोग 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेम. अब वो नाम तो एसेट्स में है नहीं, इट्स एन इनविजिबल थिंग, बट स्टिल इट विल फेच यू वैल्यू. तो हम लोग अचीजा का एसेट्स की वैल्यू 10 करोड़ नहीं देंगे, 10 करोड़ 40 लाख देंगे, 40 lakh extra for that goodwill, and then subtract the liability 2 crore. So अचीजा को मिलेगा 8 करोड़ 40 लाख instead of 8 करोड़ 8 करोड़. सर गुडविल की जगह रॉयल्टी पे कर सकते हो लोग के नाम का. रॉयल्टी इज समथिंग डिफरेंट. रॉयल्टी इज अ फिक्स्ड सर्टेन अमाउंट. रॉयल्टी फिक्स हो जाता है, रॉयल्टी एस्टिमेटेड नहीं होता है. रॉयल्टी का मतलब क्या है कि अचीजा होटल के अपना फ्रेंचाइजी ओपन किया है जुहू में, जुहू में कोई अचीजा के नाम का बिजनेस कर रहा है, पाव भाजी बेच रहा है. तो अचीजा ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है कि भाई तू जितना पाव भाजी बेचेगा मेरे को पर पाव भाजी 20% चाहिए रॉयल्टी, वो फिक्स है. तो जितना पाव भाजी बेचेगा, साल का 10,000 पाव भाजी बेचेगा तो 10,000 के हिसाब से 100 रुपए का बेच रहा है तो 10 लाख का 20%, 2 लाख रुपए उसको मिल जाएगा रॉयल्टी का. तो रॉयल्टी इज अ फिक्स्ड अमाउंट, वो एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बन के आप डिसाइड कर लेते. So, but what if he does not show it in his books? Then, like the other branch does not show it in their books, then like books of accounts, then he won't receive equal money, right? He has to show in his books, na? Why he won't show? Just to pay him less. नहीं, that is तो पूरा black money हो गया, वो तो पूरा black हो गया. Black will not come only in the books of account. Whatever is out of the books, that is black. Black तो फिर black ही है, उसका कुछ valuation का सवाल ही नहीं है, ignored. उसका कोई भी भाव ही नहीं देगा, ना इनकम टैक्स एक्ट, ना लॉ, ना कोर्ट, कुछ देखेगा ही नहीं उसको. ब्लैक पे तो उल्टा रेड मार के तुमसे टैक्स वसूलेगा वो पेनल्टी के साथ, वो नहीं देखना है. Okay, sir. अपने को तो जो बुक में रिकॉर्ड हुआ है उसके हिसाब से हम लोग बिजनेस की वैल्यू ढूंढ रहे हैं. तो समझ में आया, ये रॉयल्टी इज अ फिक्स अमाउंट, उसमें लफड़ा नहीं है. बट गुडविल, एस्टिमेशन ऑफ गुडविल इज व्हाट इज माथा खोड़ी का काम. दिस इज द प्रॉब्लम. दिस इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ आईपीओज ऑल्सो. आईपीओ भी जब लॉन्च होता है कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तब वो जो आईपीओ का प्राइस बैंड डिसीजन है वो भी इसके बेसिस पर ही होता है कि कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स क्या होगी, फ्यूचर में कितना अर्न करना है. वो फ्यूचर प्रेडिक्शन टेक्स टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्प्लिकेटेड.
And so, Hmm. are there levels to upgradation of company? Like, agar sole prop hai, तो can we go directly public from that, or we have to go private limited also? There is no compulsion कि आप सोल से प्राइवेट पार्टनरशिप करो फिर प्राइवेट फिर पब्लिक, बट ये होता ही है genuinely in any business. If you want to grow, you cannot go from first standard to 10th standard ना, unless and until you are extraordinarily something like मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक. ऐसा रेयरली होता है ये सीधा सीधा सोल प्रोप्राइटर से या फिर भी वैसा वो जो मार्क जुकरबर्ग वाला इतना फास्ट ग्रो हुआ 2004 में ही लॉन्च्ड फेसबुक एंड 2012 में ही लिस्टेड द शेयर्स ऑफ फेसबुक ऑन स्टॉक एक्सचेंज. तो विद इन 8 years, बट वो भी सोल से पार्टनरशिप बना, पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हुआ, प्राइवेट लिमिटेड के बाद पब्लिक हुआ. तो एवरी बिजनेस, क्योंकि आप स्लोली ग्रो करोगे ना, ऐसा झटक से सीधा ग्रो करने जाओगे तो पहले तो पैसे नहीं देंगे, इतना हैवी आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, इतना कैपिटल मैनेज करने का. नॉट गुड फॉर बोथ द पार्टीज, द इन्वेस्टर्स आल्सो एंड द बिजनेस आल्सो. So if the business is going step by step, it is better, and it goes like that. That is a natural transition of any business. सर अगर कोई भी पब्लिक कंपनी रहेगा वो फिर से प्राइवेट लिमिटेड या पर्सनल हो सकता है? हो सकता है, यस पॉसिबल है. डीलिस्ट करवा के शेयर्स वेस डिसकंटिन्यू रिडीम करके प्राइवेट भी कन्वर्ट हो सकता है, यस. बट नोबडी डज दैट ना. व्हाई यू विल कॉन्ट्रैक्ट योर बिजनेस? जनरली देखा जाए तो रैशनल डिसीजन नहीं है ना. वो करते हैं कोई बिजनेस ड्यू ऑल, या बिजनेस की लाइन से खत्म हो गई है, इंटरेस्ट, ओल्ड प्रोप्राइटर चले गए, नए को करना नहीं है कुछ और लाइन ऑफ बिजनेस में, न्यू जनरेशन, तो ऐसा हो सकता है डीलिस्ट करके बंद करवा के प्राइवेट या फिर पार्टनरशिप में बना देता है. बट उल्टा लाइन बहुत कम होता है, सीधा ग्रोथ ज्यादा होता है. एंड पब्लिक लिमिटेड कभी भी याद रखना डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता है. पास्ट हमेशा वो कोई भी कंपनी लिस्ट होती है उसके पीछे एटलीस्ट 20-25 years पहले एफर्ट्स बने हुए होते हैं. अभी इन्फोसिस जैसी कंपनी है, आई हर्ड अबाउट दैट. इट गॉट लिस्टेड इन द ईयर 1993 और 94, और वो फॉर्म हुई थी 1978 समथिंग, 1978-75 समथिंग. तो इतना साल, 18 साल वो पहले सोल था, छोटा गैराज में फॉर्म हुआ था, 5 लोगों ने फॉर्म किया था इन्फोसिस. इवन एप्पल, इवन गूगल, ये छोटा छोटा गैराज में दे फॉर्म द बिजनेस, देन दे ग्रू स्लोली, पार्टनरशिप, पब्लिक होते होते 20-25 साल लगा, उसके बाद ये लोग ने पब्लिक इश्यू लाया. ओके, एंड पब्लिक इश्यू मतलब क्या? इट इज रिक्वायरमेंट. आप ऐसा मजा के लिए पब्लिक नहीं लेके जा सकते. आपको बिजनेस ग्रो हो रहा है और एक्चुअली आपको पैसे की जरूरत है, बहुत पैसे की जरूरत है, इसीलिए आप पब्लिक जा रहे हो, बिकॉज मास लेवल पे आप पैसा रेस कर सकते हो शेयर होल्डर्स से. गॉट इट? तो in order to go public you have to give that prospectus पहले to the people. रेड हेरिंग prospectus आपको इश्यू करना पड़ता है. उस प्रोस्पेक्टस में आपको सब पास्ट डिटेल देनी पड़ती है बिजनेस की, 5 साल के ट्रेडिंग पीएनएल, 5 साल की बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट सब देने पड़ते हैं कि जब पार्टनरशिप में था, प्राइवेट लिमिटेड था, तब क्या क्या काम किया, क्या क्या प्रॉफिट ग्रोथ थी हमारी, क्या क्या रेवेन्यू ग्रोथ थी हमारी. इसके बेसिस पे आपको नए इन्वेस्टर से पैसा मिलता है. Got it? This is how the cycle goes. So right now, coming back to partnership, any other questions? So we move to the theory part पहले, फिर एक्चुअल में जाते हैं. ले लो, पेज नंबर है इसका सर 138. सर बीओई के बुक में आगे लिखेंगे कि नया ही बुक लेना है? नया बुक, एवरी टॉपिक न्यू बुक. बीओई के बुक में दिखेगा तो बुक वापस नहीं मिलेगा, वापस बनाना पड़ेगा. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं, नॉट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, अपना क्लास नोट्स पेज नंबर 15. क्लास नोट्स पेज नंबर 15. ऑल ऑफ यू टेक दैट, रीड. હું એક સેકન્ડ આવું છું લઉં. सॉरी, આવું છું, એક મિનિટ બુક લઈને. हाँ, क्लास नोट्स पेज नंबर 15 मिला सबको? पढ़ो. All business transactions are recorded in journal from which they are posted into ledger. ये आपने 11th में किया है. The balances of these ledger accounts are used to prepare trial balance. ledger के closing balance की list को हम लोग trial balance बोलते हैं. Thus, with the help of trial balance, we'll prepare final accounts for 2 important reasons. Number 1, to calculate profit or loss made by the business during the financial year.
Number 2, to know the values of assets and liabilities. What are assets and liabilities? Financial position, value of the business. Got it? Book value of the business. यहाँ पे हम लोग फ्यूचर अर्निंग वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल वैल्यू देख रहे हैं, क्या वैल्यू ऑफ बिजनेस है वही देख रहे हैं. Now, generally final accounts are prepared once a year, that is either on calendar year ending 31st December or on financial year ending 31st March. अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया तो what do you assume? What is the year ending? Normal financial year. Normal financial year 31st March. March. 31st March. Is that clear? 31st December हो सकता है या 31st March, आपकी मर्जी. हाँ, बिजनेस में आपको जो फाइनेंशियल ईयर रखना है आप रख सकते हो. 31st December, 30th June, 31st March, 30th April. Generally, business keeps the financial year as 31st March. Why? In order to coincide with taxation का year. Taxation department follows April to March. तो हम लोग भी फॉलो करते हैं April to March. तो टैक्स, प्रॉफिट ये सब पे करना आसान हो जाता है. उसके बाद मुझे एक और चीज बताओ, फाइनल अकाउंट आप कितनी बार बनाते हो साल में? Once a year. Once a year. कंपल्सरीली once a year है. अगर मेरे को बीच में बनाना हो तो बना सकते हैं. कब बना सकता हूँ? अभी जब चाहिए कभी भी तभी. बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो. 365 डेज आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, 365 डेज बना सकते हो. सॉरी, कुछ नहीं है. कंपनीज है ना, कंपनी जितने कंपनीज होते हैं हम लोग तो फॉर्म कर रहे हैं. जनरली प्रिपेयर वंस अ ईयर. प्रोप्राइटर जनरली प्रिपेयर्स वंस अ ईयर. ज्यादा लफड़ा नहीं होता, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज दे हैव टू शो क्वार्टरली रिजल्ट्स. ने सुना होगा क्वार्टरली. तो एवरी 3 months दे नीड टू शो फाइनल अकाउंट्स. तो मेरे को 3 महीने का फाइनल अकाउंट बनाना है. क्या करूंगा मैं? 3 महीने का इनकम, 3 महीने का एक्सपेंस, 3 महीने का प्रॉफिट लॉस मिल गया, और 3 महीने के एंड में वैल्यू ऑफ बिजनेस. जैसे साल के एंड में देखा वैसे 3 महीने के एंड में व्हाट आर माय एसेट्स, व्हाट आर माय लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ 3 months. गॉट इट? 6 महीने का एंड में करना है, 6 महीने के एंड में, 9 महीने के एंड में. नो, टैली जब आप करोगे ना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जब आप करोगे ना, आपको पता चलेगा हर एक जर्नल एंट्री के बाद लेजर रेडी है, ट्रायल बैलेंस रेडी है, फाइनल अकाउंट्स रेडी है. हर एक जर्नल एंट्री के बाद आपको अपडेटेड फाइनल अकाउंट्स देखने मिल जाएंगे. इज इट क्लियर? एवरी जर्नल एंट्री के बाद, एवरी ट्रांजैक्शन के बाद आपको फाइनल अकाउंट देखने मिल जाएंगे. तो फाइनल अकाउंट कुछ नया चीज नहीं है. व्हाट इज इट? रिजल्ट. रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. रिजल्ट आप एक साल के एंड में देखो तो एक साल का एंड का रिजल्ट बताएगा. एक महीने के एंड का देखोगे तो एक महीने के एंड का रिजल्ट बताएगा. वो रिजल्ट है. जब देखना है तब बना के देख सकते हो. ओके. देन द क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 parts. ये आपने 11th में भी देखा था. क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 parts. व्हाट आर द 2 parts ऑफ क्वेश्चन? Trial balance and adjustments. ट्रायल बैलेंस. एंड नंबर 2 एडजस्टमेंट्स. ट्रायल बैलेंस मतलब अभी अभी हमने देखा क्या होता है. ट्रायल बैलेंस लेजर से छापा हुआ क्लोजिंग बैलेंस होता है. बराबर है? मतलब इनडायरेक्टली आप लेजर को बंद कर रहे हो और फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हो. मुझे एक बात बताओ, क्या सभी लेजर अकाउंट बंद हो जाते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं फाइनल अकाउंट्स में? इनकम और एक्सपेंस ही खाली होता है. इनकम और एक्सपेंस, ऑल इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंस गेट शट डाउन, बंद हो जाते हैं. ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर एंड दे गेट ट्रांसफर टू विच अकाउंट? आइदर ट्रेडिंग और पीएन. मतलब क्या? मतलब बड़ा ही सिंपल है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सैलरी अकाउंट. सैलरी अकाउंट है, सैलरी पे की आपने, तो एंट्री क्या होगी? आपने सैलरी पे की, उसकी एंट्री क्या होगी? सैलरी टू कैश. तो सैलरी में आएगा टू कैश. ये लेजर बनाया मैंने. और फिर आप क्या लिखते हो? बाय बैलेंस कैरीड डाउन. और फिर ये बनता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर वापस आपने पे किया टू कैश. फिर वापस ये बनेगा, अभी सेकेंड मंथ में बनेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20, एंड थर्ड मंथ में हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20. ऐसा साइकिल कब तक चालू रहेगा? 12 महीने तक. 12वें महीने के एंड में क्या होगा? ये मैं 12th मंथ पे लेके जाता हूं आपको. 12th मंथ में ये टू बैलेंस बीडी होगा 1,10,000, क्योंकि 11 महीने की आपने पे कर दी है. टू कैश 12वें महीने की 10,000 पे की. 12वें महीने के एंड में आप सैलरी अकाउंट में बैलेंस नहीं लिखोगे. आप क्या लिखोगे? डायरेक्टली बाय पीएनएल. क्या लिखोगे? बाय पीएनएल. आपने क्या किया? ये पूरा का पूरा सैलरी उठा के 12 महीने का सैलरी 1,20,000 जितना रेजर में रिकॉर्ड किया था पूरा उठा के कहां डाल दिया? पीएनएल अकाउंट में डाल दिया.
तो इसकी एंट्री क्या बनी? P&L टू सैलरी. आर यू गेटिंग दैट? P&L टू सैलरी. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग एंट्री. ओके, ये क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री याद है? वी डिड दैट जर्नल प्रॉपर पार्ट इन द सर लेजर में तो नहीं होता ना P&L में नेट प्रॉफिट नेट लॉस? लेजर. लेजर अकाउंट्स में कभी प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा. लेजर से आपको P&L बनाना पड़ेगा. P&L में पता चलेगा प्रॉफिट लॉस. समझा? What are you asking? I didn't get exactly. राहुल फ्रीज हो गया. राहुल ऑडिबल? म्यूट पे हो. हाँ सर. क्या पूछा अभी कुछ? नहीं. किसने पूछा फिर? Who asked this प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट? सर मी नीर. हाँ नीर, क्या था डाउट एग्जैक्टली? लेजर में नहीं पता चलता है ना प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, तो कैपिटल में करते हैं. हाँ, लेजर मतलब ये लेजर अकाउंट, जो लेजर बुक होता है उसमें पता नहीं चलता, उससे P&L बनाना पड़ता है. P&L अकाउंट भी लेजर अकाउंट ही है. ट्रेडिंग और P&L भी लेजर अकाउंट ही है. लास्ट टू लेजर अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. इंडिविजुअल लेजर में है ना, सब इनकम एक्सपेंस अलग अलग पथरा पड़ा है. सेल अलग है, परचेज अलग है, रेंट अलग है, सैलरी अलग है, इंटरेस्ट अलग है, डिविडेंड अलग है. इन सभी चीजों को एक जगह लाना पड़ता है. तो हम लोग ये सब एक्सपेंस और इनकम को बंद करते हैं और इनको ट्रांसफर कर देते हैं कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग और P&L. तो सब एक जगह आ गए. अब यहां से ट्रेडिंग भी नॉमिनल अकाउंट है. सब नॉमिनल अकाउंट बंद करके ट्रेडिंग P&L में जाते हैं. ट्रेडिंग भी नॉमिनल है तो ट्रेडिंग बंद होकर P&L में चला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्म में. P&L भी नॉमिनल अकाउंट है, वो भी बंद होकर चला जाता है कैपिटल में नेट प्रॉफिट के फॉर्म में. तो अल्टीमेटली क्या होता है? साल के एंड में जितने नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का मतलब ऑल इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंसेस, ये सब बंद हो जाते हैं, चले जाते हैं ट्रेडिंग P&L में. ट्रेडिंग बंद होके चला जाता है P&L में, P&L बंद होके चला जाता है कैपिटल में. अल्टीमेटली कैपिटल बचता है प्रॉफिट के साथ इन योर बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट्स होते हैं? नॉमिनल वाले नहीं होते. कौन से अकाउंट्स होते हैं बैलेंस शीट में? इनकम एक्सपेंस नहीं होते बैलेंस शीट में. व्हाट अकाउंट्स यू हैव इन बैलेंस शीट? Assets and liabilities. Assets and liabilities. Why do assets and liability do not get transferred, and why do only nominal account get transferred and get closed? Because assets are there. Assets and liabilities are for long term. लॉन्ग टर्म. फर्नीचर क्या 1 साल में खत्म हो जाएगा? मशीन 1 साल में खत्म हो जाएगी? लैंड क्या 1 साल में खत्म हो जाएगा? चलेगा ना, फ्यूचर में काम आएगा. आर यू गेटिंग दैट? स्मिथ शाह. So all the long term assets and liabilities, they do not get shut down, they get carried forward to the next year. They get carried forward. Depreciation chapter याद रखने का. Depreciation chapter में क्या था? मशीनरी अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट. मशीनरी अकाउंट ईयर एंड पे क्या होता था? बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD. कभी बंद होता था मशीनरी अकाउंट? नहीं. It get carried forward to the next year. What about depreciation account? वो तो ऐड होते रहेगा ना, नया नया एसेट आएगा बिजनेस में, वो मशीन ऐड कैलकुलेट होते होगा. जाएगा. बट डेप्रीसिएशन अकाउंट क्या होता था? मशीन अकाउंट पे मशीन से सब्ट्रैक्ट हो जाता था. डेप्रीसिएशन ईयर एंड पे कहां ट्रांसफर करते थे? P&L. P&L. गॉट इट? सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे गेट कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. वो कहीं ट्रांसफर नहीं होने वाले, वो बैलेंस शीट में रहेंगे क्योंकि वो वैल्यू ऑफ बिजनेस दिखा रहे हैं. जब बिजनेस बंद करोगे तब एसेट लायबिलिटी विलुप्त हो जाएंगे. जब तक नहीं करोगे तब तक फ्यूचर वैल्यू दिखाते रहेंगे. और एक्सपेंस और इनकम, इनकी लाइफ कितनी होती है? एवरी एक्सपेंस एंड एवरी इनकम की लाइफ कितनी होती है? 1 year. 1 year or less. So they get shut down, transferred to trading P&L to calculate profit or loss, and capital में ऐड हो जाता है. नया घोड़ी नया दाव. नया साल वापस न्यू एक्सपेंस अकाउंट, न्यू इनकम अकाउंट वापस बनता है. एसेट और लाइबिलिटी ऐसा नहीं होता. एसेट एंड लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड होता है. मशीनरी है, 1 लाख रुपए का मशीनरी है तो खाली डेप्रीसिएशन P&L में जाएगा. वो एक्सपेंस है, वो यूज कर लिया आपने. बाकी 90,000 एसेट में दिखेगा क्योंकि वो फ्यूचर में काम आने वाला है. 90,000 में से 10,000 और डेप्रीशिएट हुआ, वो एक्सपेंस में दिखेगा, वो करंट ईयर यूज हुआ. बाकी 80,000 और काम आने वाला है. ये सब क्यों किया जाता है? दिस इज डन ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट. व्हाट इज मैचिंग कंसेप्ट? मैच योर इनकम विथ योर एक्सपेंस. आप जब भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हो
तो 1 साल की इनकम और 1 साल का एक्सपेंस उतना ही लेना है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। 1 ईयर का इनकम 1 ईयर का एक्सपेंस, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करो, प्रॉफिट लॉस ढूंढो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट ईयर वापस 1 साल का इनकम 1 साल का एक्सपेंस, मैचिंग कंसेप्ट, आगे बढ़ो। जो यूज हो गया एसेट वो एक्सपेंस के जैसा दिखेगा, जो यूज नहीं हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। एसेट 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 एसेट, लायबिलिटी लायबिलिटी। जो फ्यूचर में पैसा आना बाकी है, जो फ्यूचर में देना बाकी है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा इन द बैलेंस शीट। इज दिस क्लियर? सो कमिंग बैक टू आवर question, trial balance and adjustments. What is trial balance? List of all the ledger balances. तो लेजर को बंद करके डायरेक्टली किधर ट्रांसफर करना है? आइदर ट्रेडिंग या पीएनएल। ओके, बैलेंस शीट इज इट एन अकाउंट? बैलेंस शीट इज इट एन अकाउंट? नो। नो। तो जितने नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो स्टेटमेंट है, वो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। तो जितने नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, पीएनएल या ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। बट एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होते, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। वो बैलेंस को छाप के हम एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो लिस्ट है। जैसे ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस, वैसे बैलेंस शीट इज अ लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इट इज जस्ट अ लिस्ट, अ स्टेटमेंट। कोई एसेट बंद नहीं हुआ है, कोई लायबिलिटी बंद नहीं हुआ है, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। खाली वो बैलेंस को कॉपी करके एक लिस्ट रेडी कर लिया, दैट्स अ बैलेंस शीट। इज दिस क्लियर? जस्ट टू नो द वैल्यू ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। Then we come to adjustments. What are adjustments? Unrecorded entries. Very good. Adjustments are nothing but unrecorded entries. Adjustment जैसा कोई थप्पा नहीं है कि यही adjustment होता है या वही adjustment होता है। Adjustment मतलब any damn unrecorded transaction. Every transaction has got how many effects? Two effects. So every adjustment का मतलब ये ऐसी अनरिकॉर्डेड एंट्री है जो हम भूल गए रिकॉर्ड करना, या रह गई है, या जानबूझ के नहीं की है। इसको हम डायरेक्टली वीआईपी एंट्री देते हैं फाइनल अकाउंट्स में, सीधा वीआईपी एंट्री देते हैं फाइनल अकाउंट्स में बाय डूइंग प्लस एंड माइनस, जो लास्ट ईयर किया था हमने, प्लस एंड माइनस। So adjustments are unrecorded transaction, VIP entry in final accounts by doing plus and minus. So how many effects every adjustment will have? Two effects. Two effects. जरूरी है कि एक प्लस एक माइनस, दो प्लस दो माइनस, ऐसा कुछ होना चाहिए गारंटी? नो। वन इफेक्ट शुड बी डेबिट, अनदर वन शुड बी क्रेडिट, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, डबल एंट्री है, एडजस्टमेंट इज एन अनरिकॉर्डेड एंट्री। सो वन इफेक्ट शुड बी डेबिट, अनदर इफेक्ट शुड बी क्रेडिट। ये हम लोग फाइनल अकाउंट जब करेंगे सम्स के साथ बताता हूँ एडजस्टमेंट कैसे देने इफेक्ट। फिलहाल याद रखो क्वेश्चन का दो पार्ट है, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, जस्ट लाइक लास्ट ईयर। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के आइटम का कितना इफेक्ट होगा इन द फाइनल अकाउंट? One effect. One effect, either in trading or in P&L or in balance sheet. क्यों one effect? क्योंकि दूसरा इफेक्ट लेजर में आ चुका है। लेजर में बाय P&L लिखा तो P&L में टू सैलरी, लेजर में बाय P&L लिखा तो P&L में टू डेप्री। यू आर गिविंग वन इफेक्ट इन द लेजर, वन इन द ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। बैलेंस शीट में तो छाप रहे हो लिस्ट। तो वन इफेक्ट ऑफ आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड, only one effect of an item of trial balance. Adjustments will have how many effects? Two effects. Adjustments are unrecorded transactions, have two effects. Is that clear? Coming to the answer. Answer में हम लोग last year क्या बनाते थे? What we used to prepare last year? Trading account, profit, Trading account, P&L account and balance sheet. Okay? इस साल भी वही बनाने का है। एक चीज एक्स्ट्रा दिख रही होगी आपको, क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको याद है कैपिटल आप कहाँ लिखते थे लास्ट ईयर? वेयर वी यूज्ड टू राइट द कैपिटल? लायबिलिटी साइड। Liability. तो इस साल आप वैसे भी कर सकते हो, वो एक प्रेजेंटेशन होता है, लायबिलिटी में दिखा के प्लस माइनस कर सकते हो। बट इस साल कैसा है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है, तो कैपिटल में थोड़े ज्यादा चेंजेस होंगे, प्लस माइनस। तो लायबिलिटी साइड करोगे ना तो गिचड़ी शैबी लगता है, थोड़ा इनडिसेंट लगता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे और उसमें अच्छे से प्रेजेंट करेंगे और उसका फाइनल वैल्यू डायरेक्टली लायबिलिटी में दे देंगे। तो जो आउटर कॉलम वैल्यू है वो डायरेक्टली अकाउंट में से ट्रांसफर कर लेंगे। कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। तो बेसिकली इन द दिस ईयर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट डायरेक्टली कैपिटल को लायबिलिटी में नहीं दिखाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, सब चेंजेस अकाउंट में दिखाएंगे और फाइनल अमाउंट सीधा लायबिलिटी में दिखा देंगे, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। Just for presentation, this is an extra account for presentation, capital or current account. Okay.
बाकी नहीं बनाया और लास्ट ईयर के जैसा दिखाया, 2-3 पार्टनर का कैपिटल एक के नीचे एक इन द लायबिलिटी और उसी में प्लस माइनस करके दिखाया तो भी चलेगा. बोथ द प्रेजेंटेशंस आर फाइन. व्हाई डू वी मेक ट्रेडिंग अकाउंट? $1,000,000 क्वेश्चन. देखो, आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो दो रीजन से. एक होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट से पता चल गई. प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए हम लोग एक नहीं दो अकाउंट बनाते. ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते, पीएनएल भी. दो दो अकाउंट की क्या जरूरत? एक अकाउंट से काम नहीं चल रहा था. ट्रेडिंग अकाउंट में जो बिजनेस का सब मेजर एक्टिविटीज रहता है, मतलब अगर गुड्स और का परचेज सेल्स रहता है तो वो परचेज सेल्स से जो मेजर इनकम आता है वो ट्रेडिंग से रिकॉर्ड होता है, और फिर जो नॉमिनल इनकम जो इन्वेस्टमेंट से बॉन्ड से जो भी आता है वो पीएनएल से रिकॉर्ड होता है. तो दोनों इनकम एक साथ रिकॉर्ड करते हैं. बराबर है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इनकम्स एंड इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं. कोर इनकम्स एंड कोर एक्सपेंसेस. ओके, फॉर एग्जांपल जियो. जियो का कोर इनकम क्या है? टेलीकॉम सर्विस, सब्सक्रिप्शन. बराबर. सर्विसेज, सर्विसेज मतलब प्रीपेड, पोस्टपेड बिल्स, जियो फाइबर का रिचार्ज, ये सब उसका कोर इनकम्स. व्हाट आर इट्स नॉन कोर इनकम्स? नॉन कोर इनकम्स उसको मिलता है, सॉरी, एप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन हो रहा है कोई एसेट का, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, और कोई जगह भाड़े पे दिया है उसका रेंट आ रहा है. ये सब उसका कोर इनकम है कि नॉन कोर इनकम है? नॉन. कोर एक्टिविटी क्या है? सब्सक्रिप्शन. हर एक बिजनेस का कोर इनकम होता है. ओके, हर एक बिजनेस का कोर इनकम होता है. हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस में, तो हमारा कोर इनकम क्या होगा? ट्रेडर के कोर इनकम क्या होती है? सेल्स इज द कोर इनकम. इसके अलावा हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, हमें रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब हमारे कोर इनकम. इसके लिए थोड़ी बिजनेस कर रहे हो, सेल्स के लिए बिजनेस कर रहे हो, राइट? तो हर एक बिजनेस की एक कोर एक्टिविटी होती है, तो वो कोर इनकम ही हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं. हमारे केस में सेल्स होता है. एंड एक्सपेंस साइड पे कोर एक्सपेंसेस ही हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं. कोर इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस. व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस? इसका एक लिस्ट का आपको खाली समझना है. इसको याद है, क्राइटेरिया दिया था मैंने. what type of expenses come in trading account? Expenses related to डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस बराबर है, बट वो कौन से होते हैं? रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन. परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. परचेज या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है. परचेज एंड सेल्स नहीं बोला मैंने, परचेज एंड प्रोडक्शन. मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे दिखते हैं? ओनली एंड ओनली एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो गुड्स को खरीदने पे हो रहे हैं और जो गुड्स को बनाने पे हो रहे हैं. यही कोर होते हैं, यही डायरेक्ट होते हैं. क्यों ये कोर होते हैं, क्यों ये डायरेक्ट होते हैं? क्योंकि अगर ये खर्चे कम हो गए ना तो आपके सेल्स एक्टिविटी कम हो जाएंगे. आपने अगर परचेज कम किया तो सोचो क्या होगा? क्या आप गुड्स ज्यादा बेच पाओगे? परचेज इज द बिगेस्ट एक्सपेंस ऑफ अ ट्रेडर. तो यही आपने कम कर दिया तो सेल्स होगा ही नहीं. अच्छा, आपने फ्रेट देना बंद कर दिया, कम कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कटौती कर दी, तो क्या ट्रांसपोर्ट होंगे गुड्स? आएंगे ही नहीं. तो बेचोगे कैसे? तंबूरा. अगर आपने वेजिस नहीं दिया, हम लोग सेमी मैन्युफैक्चरर हैं, आपको बताया था, थोड़ा बहुत प्रोसेस करके गुड्स को बेचते हैं, इसके लिए हमारे पास फैक्ट्री होता है वगैरह. तो आपने फैक्ट्री में वर्कर को वेजिस वगैरह नहीं दिया, गुड्स का वेजिस वगैरह नहीं दिया, तो क्या वो वर्कर काम करेगा? परचेज कांस्टेंट रख के भी मार्जिन जरा बढ़ा के कर सकते हैं ना प्रॉफिट. बट रेगुलर कॉम्पिटिटिव बिजनेस में मार्जिन बढ़ाना हलवा नहीं होता. कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, आपका कॉम्पिटिटर भी है मार्केट में, वो 10 रुपए में बेच रहा है और आप 11 रुपए में बेच रहे हो, किसके पास जाएगी पब्लिक? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता ही है. एवरी बिजनेस हैज कंपटीशन. वेरी रेयर बिजनेस आर मोनोपोलीज who can increase the prices as per their own convenience. But for that you need to be on that high बोलते हैं ना, high rollers, eagles of the business. Okay, only then you have that margin power with you. That is very rare thing. Majority 80% of the 90% of the business are competitive business. They cannot just simply raise the prices. They have to make it competitive. So कहाँ थे हम लोग? Yeah, direct expenses, important expenses.
इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो आप कम नहीं कर सकते, बहुत कम नहीं कर सकते, आपका एक्टिविटी हैम्पर हो जाएगा। जैसे कि कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, जो गुड्स को खरीदने पे हो रहा है, वेजेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, गुड्स को बनाने पे हो रहा है। तो इन जनरल जो ट्रेडिंग में खर्चे होते हैं, हर एक एक्सपेंस नहीं होगा शायद, बट मोर और लेस मेजॉरिटी जो भी एक्सपेंस ट्रेडिंग में होते हैं वो इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं, डायरेक्ट नेचर के होते हैं। उनमें आप ज्यादा खुजली नहीं कर सकते, ज्यादा कम ज्यादा नहीं, कम नहीं कर सकते। वो कम करोगे तो आपके सेल्स एक्टिविटी हॉल्ट हो जाएंगे या हैम्पर हो जाएंगे। बट अब जाते हैं पीएनएल पे। पीएनएल पे कौन से एक्सपेंस और कौन से इनकम होते हैं? व्हाट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स यू रिकॉर्ड अंडर पीएनएल? लेस इंपॉर्टेंट इनकम्स एंड लेस इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस। हमारी कोर एक्टिविटी क्या थी? हमने बताया अभी अभी, व्हाट वाज आवर कोर एक्टिविटी इनकम? सेल्स। सेल्स। तो ट्रेडिंग में एक ही इनकम दिखाते हैं, दैट इज सेल्स, कोर इनकम। इसको छोड़ के जो भी इनकम है वो पीएनएल में, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गई, डिविडेंड हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, बैड डेट रिकवरी हो गया, रिफंड हो गया, ये सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, ये सब परचूरन इनकम है। इनके ऊपर बिजनेस डिपेंड नहीं करता, ये नहीं भी हुआ तो लफड़ा नहीं है, कम भी हुआ तो लफड़ा नहीं है। सो ये इनकम्स आप दिखा दोगे पीएनएल में। आर यू गेटिंग दैट? और पीएनएल में खर्चे कौन से दिखते हैं जिसमें आप कमती कर सकते हो, कटौती कर सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आपका हो गया रेंट, आपका ऑफिस का रेंट है, आपके ऑफिस आपने सेटअप किया, ऑफिस रेंट है, ऑफिस का रेंट है 50,000, आपने ऑफिस आधी कर दी, स्टाफ आधा कर दिया, अभी भी काम चालू है, 50 का रेंट 25 हो गया। विल योर सेल परचेज एक्टिविटी बी हैम्पर्ड? No. So like in pandemic times, no, like the office rent would have been cut down, and again the work from home तो उसका gadgets का cost बढ़ गया। बट अभी मेरा क्लास बिजनेस है, तो मेरा कोर एक्टिविटी क्या है, मेरा कोर इनकम क्या है? Tutoring. Fees from students, right? That's my core income. Ancillary, my investments, interest, dividend, that's an ancillary income. Core income is fees. What is my core expense? Rent of classes. In case of offline, obviously it is rent of classes, and in case of online, this becomes my internet charges, direct electricity and all. Core हो जाता है ये मेरा expense, बराबर है? तो stationary हो जाता है, अगर आपको notes नहीं दूंगा तो नहीं चलेगा. These are my core expenses. Can I do changes in these expenses? Not possible. My business activity would be hampered. So like that, every business has certain core incomes, certain core expenses. ये जो आप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हो ना, ये थोड़ा थियोरी कंसेप्ट है, ये आपको सेट लिस्ट दे दी जाती है, ये कोर है, ये नॉन कोर है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हर एक बिजनेस में आपको कंसेप्ट दिमाग में फिट करना है, क्या याद रखना है? कोर एंड नॉन कोर, इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट, जिसके वजह से बिजनेस चल रहा है, जो मेन इनकम है और जो मेन एक्सपेंस है। जो नहीं करोगे तो इनकम ठप हो जाएगी, वो एक्सपेंस होते हैं कोर, उनको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस। गॉट इट? वो जाते हैं ट्रेडिंग में। और जो लेस इंपॉर्टेंट इनकम और एक्सपेंस होते हैं, जो आप कम करोगे या 19-20 करोगे, चेंजेस करोगे, तो एक्टिविटीज हैम्पर नहीं होगा, चलते रहेगा। गॉट इट? एग्जाम्पल मैंने आपको रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी होती है, नॉट द पावर ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री पावर कम कर दोगे तो प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा। ऑफिस के कोई भी खर्चे हैं, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस रेंट है, ऑफिस में 4 एसी थे, मैंने एक एसी करवा दिया, या चारों एसी निकलवा के पंखे बिठवा दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने सीधा आधा कर दिया। इज माय परचेस एक्टिविटी हैम्परिंग बिकॉज ऑफ दैट? नो। सो ये वाले जो खर्चे हैं, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एडवर्टाइजमेंट है, समझना है, ये स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट है ना, ये कोर एक्सपेंस नहीं है। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? आपके गुड्स को प्रमोट करता है, लेकिन आप जीरो एडवर्टाइजमेंट करोगे, जीरो, फिर भी आपके गुड्स बिकेंगे, लेकिन बहुत स्लोली बिकेंगे। बिकने वाले, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएंगे बिकने, कम नहीं होने वाले, बिकेंगे, स्लोली स्लोली ग्रो होंगे। एडवर्टाइज करोगे तो थोड़ा फास्ट होंगे। आर यू गेटिंग दैट? एडवर्टाइजिंग इज लाइक स्टेरॉइड, इट विल बूस्ट अप योर एक्टिविटी। आर यू गेटिंग दैट? वो एडिशनल फोर्स है, वो आपके एक्टिव, वो बंद भी कर दोगे ना। अभी मेरा बिजनेस है, देयर आर मेनी बिजनेस, वी डोंट एडवर्टाइज, आई डोंट एडवर्टाइज एट ऑल, we don't advertise at all, zero advertisement. Okay, so there are many businesses who do not advertise, it is all word of mouth publicity, automatically based on
the students, based on the customers, whatever is the business. So advertisement is not a core expense of business. ये आप कम कर दोगे, आपके sales activity खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, slow हो जाएंगे. Is this clear? एडवर्टाइजमेंट से बूस्टअप होता है, फास्ट हो जाते हैं. तो सेल्स रिलेटेड जो भी खर्चा है ये आपके एक्टिविटीज को डायरेक्टली हैम्पर नहीं करने वाला है. ऑफिस रिलेटेड डायरेक्टली हैम्पर नहीं करने वाला है. फाइनेंस रिलेटेड डायरेक्टली हैम्पर नहीं करने वाला है. ये सब लेस इंपॉर्टेंट है, इसको हम डाल देते हैं पीएनएल में. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आप जो पढ़ रहे हो 12th स्टैंडर्ड, ये थियोरिटिकल कंसेप्ट है. प्रैक्टिकली याद रखना है, बिजनेस टू बिजनेस ये एक्सपेंस और इनकम चेंज हो जाता है. ओके, कोर और नॉन कोर का फंडा याद रखना बस. कोर वाले ट्रेडिंग, नॉन कोर वाले पीएनएल. देख लो अभी लिस्ट, हमने लास्ट ईयर भी लिस्ट देखी थी, आज हम ट्रेडिंग तक करके खत्म कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट तक करके खत्म करते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग, आपका 11th स्टैंडर्ड में मेजॉरिटी आई थिंक सब क्लासेस में स्टार्ट तो हो चुका है फाइनल अकाउंट्स. थोड़े लोग ने नहीं किया है बिल्कुल स्टार्ट, अगर या फिर बिल्कुल फाइनल अकाउंट नहीं किया, तो मैं आज मेरा ही 11th स्टैंडर्ड का बेसिक वाला जो मैंने पढ़ा है उसका वीडियो वापस शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, तो वो आप गो थ्रू कर लो. एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. तो शायद सम पॉइंट्स आई माइट नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि अभी 12th में रिपीट हो रहा है सब. तो अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम्स हैं बेसिक में फाइनल अकाउंट्स के, तो आप वीडियो कर सकते हो. यू कैन आस्क मी ऑल्सो, डाउट्स वाउट्स व्हाट्सएप पे करो, कॉल करो, आई विल क्लियर इट आउट. अगर नहीं जम रहा है तो, और वीडियो तो है, उससे भी रेफर कर सकते हो. तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लो. ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. व्हाट इज दिस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस? इंपॉर्टेंट प्रॉफिट या इंपॉर्टेंट लॉस. दिस इज नॉट द फाइनल प्रॉफिट और लॉस. ये खाली आपका कोर एक्टिविटी का रिजल्ट है. ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाने का मतलब यही है कि कोर एक्टिविटी से फायदा हो रहा है कि नुकसान देख लो. क्योंकि अगर कोर एक्टिविटी में नुकसान हो रहा है तो शटर डाउन, दुकान बंद, आगे करके बिजनेस मतलब नहीं है. कोर खर्चे आप कम कर ही नहीं सकते, कोर इनकम कम हो जाएगी. तो बहुत, और भाव आप बढ़ा नहीं सकते कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो. तो अगर ग्रॉस लॉस में हो तो शटर डाउन. तो इसीलिए देखने के लिए कि भैया सेफ है हम लोग, इसीलिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट और इंपॉर्टेंट लॉस. ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. All purchases and direct expenses are transferred on the debit side of trading and all sales on the credit side. ये डेबिट कैसा है, क्रेडिट कैसा है, समझा आपको? एक्सपेंसेस बंद होके, एक्सपेंसेस में बाय ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में टू एक्सपेंस बंद किया ना, और इनकम में टू ट्रेडिंग, टू बैलेंस के जगह टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में बाय इनकम, करस्पॉन्डिंग एंट्री. सो डेबिट साइड पे एक्सपेंस दिखेगा, क्रेडिट साइड पे इनकम दिखेगा. अब पढ़ो, स्टॉक्स का मैं एक्सप्लेन करता हूं वापस बाद में. डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट देख लो. सबसे पहले आपको इधर दिखेगा, स्टॉक को बाद में देखो, परचेज लेस रिटर्न और सेल्स लेस रिटर्न दिखा आपको. परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न. परचेज में से कौन सा रिटर्न माइनस किया है? Sales returns. हैं? Purchase Purchase returns. returns. परचेज रिटर्न. सेल्स लेस Sales less year. डिफेक्टिव गुड्स जो रिटर्न कर दिया, प्रेजेंटेशन के लिए नेट परचेज दिखाते हैं. नेट परचेज का खर्चा, पूरे साल का नेट परचेज का खर्चा, कोर एक्सपेंस. सेल्स कोर इनकम, इंपॉर्टेंट इनकम. ओके, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, नेट इनकम. डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट देखते जाओ. वेजेस रटाने, आपको एक साधारण सा क्वेश्चन पूछना है अपने आप को. क्या क्वेश्चन पूछना है? इज दिस एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स? क्या ये गुड्स को खरीदने या बनाने पे हो रहा है? गुड्स को खरीदने या बनाने पे हो रहा है तो किधर जाएगा? ट्रेडिंग, वरना पीएनएल. सुना? देखो ध्यान से, वेजेस किस पे होता है? प्रोडक्शन पे, टू वर्कर्स, तो ट्रेडिंग. वेजेस एंड सैलरी का मतलब क्या होता है? मोर प्रोपोर्शन ऑफ वेजेस इनटू प्रोपोर्शन ऑफ सैलरी. तो वेजेस एंड सैलरी दिया तो ट्रेडिंग, सैलरीज एंड वेजेस दिया तो PNL. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, प्रोडक्शन का वेजेस, ट्रेडिंग. प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग. वर्क मैनेजर सैलरी, हु इज अ वर्क मैनेजर? तो ऑफिस का, फैक्ट्री का सुपरवाइजर. फैक्ट्री का सुपरवाइजर. फैक्ट्री का सुपरवाइजर इज वर्क मैनेजर. ऑफिस वाला इज मैनेजर. नॉर्मल मैनेजर, ऑफिस मैनेजर. तो ध्यान क्या रखना है, फैक्ट्री किसके लिए यूज होता है? प्रोडक्शन. तो फैक्ट्री का जो भी खर्चा है डायरेक्ट सब ट्रेडिंग. फैक्ट्री का जो भी खर्चा है सब ट्रेडिंग. तो वर्क मैनेजर सैलरी,
फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री रेंट, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री हीटिंग, लाइटिंग, सब ट्रेडिंग। कैरेज, ओनली कैरेज इज गिवन, याद है आपको बताया था, ओनली कैरेज, फ्रेट, रॉयल्टी, किधर जाता है कैरेज? ओनली कैरेज, ओनली फ्रेट, ओनली रॉयल्टी। Trading debit. Trading. Why? Because carriage can be of two types. कैरेज इनवर्ड भी होता है, कैरेज आउटवर्ड भी होता है। कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स को लाने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स को बेचने का खर्चा। तो सिर्फ कैरेज फ्रेट दिया मतलब इनवर्ड अज्यूम करना है, तो ट्रेडिंग गुड्स को खरीदने का है ना, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। तो कैरेज विल गो टू ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज ऑन परचेज अगेन ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड अगेन ट्रेडिंग डेबिट। व्हाट अबाउट कैरेज आउटवर्ड? P&L debit, because that is an expense on got it? फ्रेट ऑन परचेज खरीदने पे हुआ है, ट्रेडिंग डेबिट। ओनली फ्रेट अभी अभी बोला, खरीदने पे अज्यूम करना है, ट्रेडिंग डेबिट। फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ट्रेडिंग डेबिट। व्हाट इज कोल एंड कोक? कोल एंड कोक म्हणजे फ्यूल एक्सपेंस। फ्यूल किधर लगता है? कोलसा, फैक्ट्री, मशीन्स, तो दैट इज अगेन प्रोडक्शन। सो कोल एंड कोक, वाटर, पावर, फ्यूल, ऑयल, गैस, ये सब फैक्ट्री, ट्रेडिंग डेबिट। हीटिंग एंड लाइटिंग का मतलब क्या होता है? हीटिंग किस में ज्यादा लगती है सोच लो? प्रोडक्शन, हीटर्स एंड ऑल आर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, लाइटिंग मींस इलेक्ट्रिसिटी, वो ऑफिस में लगती है। तो ये थोड़ा रट्टोफाइड टर्म है। हीटिंग एंड लाइटिंग ऑफ हीटिंग, तो ट्रेडिंग में डालो। लाइटिंग एंड हीटिंग दिया है, लाइटिंग पहले हीटिंग बाद में, तो फिर पीएन। ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। रॉयल्टी, रॉयल्टी बताता हूँ। हीटिंग एंड लाइटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग समझा, हीटिंग मोर लाइटिंग लेस, तो ट्रेडिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग है तो पीएनएल। जैसे वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग, सैलरी एंड वेजेस है तो पीएनएल। ओके, रॉयल्टी, व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टी? अभी अभी बोला, आपका ब्रांड नेम को यूज कर रहा है, मतलब मैं किसी का ब्रांड नेम यूज कर रहा हूं, उसके नाम पे गुड्स बेच रहा हूं, तो मुझे उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, मुझे उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, बराबर है? तो रॉयल्टी जनरली किस पे होती है? परचेज पे होती है, गुड्स खरीदने पे होती है। वो भी ऑक्सफोर्ड नाम का टी शर्ट का ब्रांड बेच रहा है, मैं भी ऑक्सफोर्ड नाम का टी शर्ट का ब्रांड बेच रहा हूं, उसके नाम पे कर रहा हूं, मुझे उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी पर टी शर्ट। तो रॉयल्टी इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है। कुछ नहीं दिया है, अज्यूम इट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस है कौन सा है? डायरेक्ट है, परचेज रिलेटेड है, गुड्स खरीदने पे हुआ है। तो रॉयल्टी हमेशा अज्यूम करना है परचेज रिलेटेड वाला ही है। इनकम हो सकती है, इनकम हुई तो इनडायरेक्ट पीएनएल में चली जाएगी, नॉन कोर इनकम। एक्सपेंस हुआ तो ट्रेडिंग डेबिट। इज दिस क्लियर? डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। रॉयल्टी ऑन परचेज, रॉयल्टी ट्रेडिंग डेबिट। मोटिव पावर फ्यूल था। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट नाम से ही पता चलता है खरीदने पे हुआ है, ट्रेडिंग डेबिट। कस्टम ड्यूटी, कस्टम से क्लियरेंस करके लाने को आपको टैक्स देना पड़ता है, इलीगल गुड्स तो नहीं ला रहे हो, तो क्लियर करके खरीदने पे हो रहा है, ट्रेडिंग डेबिट। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बंद हो गया अभी जीएसटी आने के बाद, पहले स्टेट में गुड्स लाने का टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी भी निकल गया जीएसटी के बाद। क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी वाज अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन, ऑक्ट्रॉय वाज अ टैक्स टू ब्रिंग द गुड्स इन स्टेट, दोनों परचेज और प्रोडक्शन के थे। क्लियरिंग चार्जेस क्या होता है? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, याद है आपको? ट्रेडिंग गुड्स को पोर्ट से, डॉक से फैक्ट्री में लाने का। वो तो फ्रेट भी होता है। क्लियरिंग इज मेनली एजेंट को देते हैं हम लोग। वी अपॉइंट एन एजेंट कॉल्ड सीएनएफ एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है तो मैं एजेंट को दे दूंगा, तू कर भाई, मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा। तो क्लियरिंग कमीशन, फॉरवर्डिंग कमीशन। ओके, क्लियरिंग इज फॉर इंपोर्ट, फॉरवर्डिंग इज फॉर एक्सपोर्ट। आप फॉरवर्ड करते हो ना मैसेज, दैट्स एक्सपोर्ट। क्लियरिंग इज फॉर इंपोर्ट। ओके, तो क्लियरिंग चार्जेस खरीदने पे हो रहा है, ट्रेडिंग डेबिट। फॉरवर्डिंग चार्जेस बेचने पे हो रहा है, तो पीएनएल में जाएगा। डॉक चार्जेस, कंटेनर का चार्जेस, कंटेनर का रेंट, इंपोर्ट करके लाया हुआ गुड्स रखा था 2-3 दिन, उसका चार्जेस, तो परचेज रिलेटेड है, ट्रेडिंग डेबिट। अनलोडिंग चार्जेस, अनलोड करके लेके आया, लोडिंग इज पीएनएल, अनलोड मतलब मजदूर लोग को पैसा दिया अनलोड करके लेके आने का, तो दैट्स ट्रेडिंग डेबिट। सो हर एक एक्सपेंस, लिस्ट रट्टा नहीं मारना है आपको, एक लाइन याद रखनी है। व्हाट इज दैट लाइन? एक सवाल, इज दिस एक्सपेंस रिलेटेड टू व्हाट? परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्या ये गुड्स को खरीदने पे हो रहा है या गुड्स को बनाने पे हो रहा है? अगर द आंसर इज यस, देन दैट एक्सपेंस गोज टू ट्रेडिंग डेबिट।
If the answer is no, then that expense goes to P&L debit. Is this clear? Sir, and dock charges? Dock charges means those docks, containers. Yeah. आपने import किया और फैक्ट्री में लाने से पहले 2-3 दिन डॉक्स में लेके नहीं आए ताबड़तोड़ शिप में से निकाल के, तो डॉक का रेंट पे करना पड़ेगा ना. That is basically related to import. Import से ही related है. So trading debit. और इनकम साइड, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड देखो, एक ही इनकम दिखेगी आपको. व्हाट इज दैट एक ही इनकम? Sales. ऑलवेज फॉर अ ट्रेडर. अब वापस ये थ्योरी है, इसके लिए खाली सेल्स दिख रहा है. प्रैक्टिकली बिजनेस में 2-3 नॉन कोर इनकम्स हो सकती हैं. ओके, बिजनेस अगर एकदम कोर एक्टिविटी में है, 2-3 कोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो 2-3 कोर इनकम्स हो सकती है. हमारे यहाँ पे एक ही है, सेल्स इनकम. इज दिस क्लियर? हमारी इनकम एक ही है, सेल्स इनकम, और सब परचूनर इनकम P&L में. एक सेल्स इनकम ट्रेडिंग. स्टॉक का मैं डिस्कस करूंगा बाद में. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, पढ़ो. इफ द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, वी मेक ग्रॉस प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा. समझा क्यों? इनकम बड़ा एक्सपेंस छोटा तो प्रॉफिट, एक्सपेंस बड़ा इनकम छोटा तो लॉस. कॉमन सेंस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड आइदर इन फैक्ट्री और ऑन परचेज ऑफ गुड्स और ऑन मैन्युफैक्चरिंग. सिंपल. इसी बेसिस पे डिसाइड करना, रट्टा मत मारना लिस्ट का, भूल जाओगे, मिस्टेक करोगे. एक महामंत्र याद रखना, एक्सपेंस ऑन परचेज एंड प्रोडक्शन, फैक्ट्री, सब ट्रेडिंग, अदरवाइज P&L. इफ ओनली कैरेज फ्रेट एंड रॉयल्टी इज गिवन, दे आर अज्यूम्ड टू बी डायरेक्ट रिलेटेड टू परचेज. परचेज रिटर्न्स आर आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न आर आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड. ये तो मालूम है. ये माइनस करना है परचेज और परचेज रिटर्न, सेल्स से सेल्स रिटर्न्स. यहां तक क्या एक्सप्लेन किया, आज क्या बड़बड़ की, समझ में आया आपको? हमने स्टार्ट की थी फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप से चालू किया. पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? जहां पे ओनर एक से ज्यादा हो जाते हैं. क्यों होते हैं? एडिशनल कैपिटल एंड स्किल, बराबर है, ग्रोइंग ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? When 2-3 people come together because of lack of capital or to expand the business. हाँ, but how do you form a partnership? By making a deed. Okay. Yeah. बनाना है partnership deed. Register with registrar of firms. Agreement is made. Agreement को register करवाए तो it will be called as a deed. Registered agreement is called as a deed. Is a written agreement compulsory in India? Especially in Maharashtra, not in India. Only in Maharashtra. In India it is optional. Verbal भी चलेगा. Better क्या है? Written की verbal. रिटर्न. और जितना हो सके रिटर्न कर लो, क्योंकि रिटर्न नहीं हुआ तो एक्ट खाली 2 चीज बोल रहा है. क्या 2 चीज बोल रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल एंड लोन पार्टनर्स लोन पे टैक्स किधर आएगा? एक्सपेंसेस में आएगा या फिर लायबिलिटीज में आएगा? इनकम टैक्स. हाँ, इनकम टैक्स, जीएसटी, मतलब ऑक्ट्रॉय वगैरह. जीएसटी इज नॉट अवर एक्सपेंस. जीएसटी इज एन एसेट और अ लायबिलिटी. ऑक्ट्रॉय वगैरह तो एक्सपेंस, वो तो अभी निकल गया है. ऑक्ट्रॉय वगैरह आएगा नहीं सम्स में, दिखा तो एक्सपेंस में डाल सकते हो. इधर दिया है ना जैसा ऑक्ट्रॉय एंड एक्साइज एंड ऑल एक्सपेंस. बट इनकम टैक्स इज एक्सपेंस. लास्ट में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, लेकिन आपको टैक्स कैलकुलेशंस नहीं है तो टैक्स आएगा नहीं. इनकम टैक्स अगर है तो पार्टनरशिप में P&L डेबिट में आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स आता है. ओके, सो बाकी कोई भी टैक्स दिखा तो एक्सपेंस, P&L डेबिट. ट्रेडिंग में कौन सा जाएगा? एक्साइज और ऑक्ट्रॉय. एक्साइज, ऑक्ट्रॉय, कस्टम, इंपोर्ट, ये सब ट्रेडिंग. अभी जो लिस्ट में दिया ना परचेज रिलेटेड, उसमें से भी एक्साइज ऑक्ट्रॉय निकल गया है तो इन कस्टम्स और इंपोर्ट ड्यूटी आती है. इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम वुड बी ट्रेडिंग डेबिट. वेयर वी पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का 2 ही चीज दिया है. नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल एंड नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना टके से होना चाहिए? 6%. बाकी कुछ भी दिया है लॉ में, बाकी सब साइलेंट. तो यू हैव टू फॉर्म द डीड एज परफेक्टली एज पॉसिबल. सब प्रोविजन डाल देने का. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, रेट, प्रॉफिट शेयरिंग, डिटेल्स ऑफ बिजनेस, कैसे वाइंड अप करना है, सब कुछ. तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर डिस्प्यूट्स हुआ तो. उसके बाद हमने देखा फाइनल अकाउंट्स. व्हाट आर फाइनल अकाउंट्स? अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. Why do we make final accounts? 2 important reasons. To calculate the profit Profit and and loss and financial value of position of the business. business. प्रॉफिट और लॉस कैसे ढूंढा जाता है? 2 अकाउंट बना के, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट. व्हाट डू यू शो इन ट्रेडिंग एंड P&L? पूरे साल का क्या? Expense. Expenses
एक जगह पे दिख जाता है ट्रेडिंग पीएनएल में। ट्रेडिंग अलग क्यों, पीएनएल अलग क्यों? ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट, पीएनएल में लेस इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग की लिस्ट हमने देखी थी अभी अभी, कौन से इनकम और कौन से एक्सपेंस? डायरेक्ट इनकम में एक ही इनकम जाएगा ट्रेड में, विच इज दैट इनकम? सेल्स इनकम। बाकी सब इनकम पीएनएल में। एक्सपेंसेस में कौन से जाएंगे? डायरेक्ट। व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंस? लिस्ट रट्टोफाई करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन याद रखने। व्हाट इज दैट? All expense related to purchase and related production. to purchase और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कुछ को खरीदने या बनाने पे हो रहा है तो ट्रेडिंग, अदरवाइज पीएनएल। व्हाट अबाउट बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में क्या दिखता है? एक्सपेंस इनकम दिखता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज? Asset liabilities. Do assets and liabilities get transferred, shut down at the end of the year, or they get carried forward? Cut down. उनकी लाइफ लंबी है, वो फ्यूचर में चलते रहेंगे। Carry forward. एक्सपेंस और इनकम की लाइफ कितनी होती है? 1 year. इसलिए वो बंद होके चले जाते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल में। अभी तक हमने ट्रेडिंग देखा हुआ है, कल हम पीएनएल देखेंगे मंडे को, सॉरी। और ट्रेडिंग अकाउंट बंद करके क्या मिलता है? विच प्रॉफिट और विच लॉस? Gross profit or gross loss. ग्रॉस लॉस, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट और इंपॉर्टेंट लॉस। इज दैट क्लियर? तो यहां तक रिवाइज करना है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया था वो रीड करना है। शीट का, ट्रेडिंग का, अपना क्लास नोट्स का ट्रेडिंग का प्रोफॉर्मा तक रीड करना है। तो डाउट्स हो तो क्लियर आउट कर लेना इमीडिएटली। और मैं 11th का वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको और डिटेल में थोड़ा रिवाइज करना है, 11th का देखना है तो वो गो थ्रू कर सकते हो। नहीं समझा तो व्हाट्सएप या कॉल करो। और कुछ रिटर्न होमवर्क नहीं है। संडे को ऑल आर कोऑर्डियली इनवाइटेड टू द क्लास फॉर सबमिटिंग द नोटबुक्स एंड आई विल मैसेज द टाइम। ओके, ग्रुप पे मैसेज कर ये दूंगा। संडे को सर? हाँ भाई, कल संडे है। डाउट है तो रुको। Sir, can you coordinate with Rajiv sir since he is also yes we'll coordinate and we'll put, don't worry, डबल धक्का नहीं करवाएंगे, coordinate and put। तो डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय। Bye, sir. Sir, हम लोग ना